Welcome to The Code. Construction, design and engineering. This is India's #1 construction podcast. Hi Isha, good morning. Good morning, Rishabh. आज हम क्या कर रहे हैं? Are we ranting out our experience of the renovations that we've done in each other's home? Like you've recently done your home. I'm currently still doing my home. Yes. वो पता नहीं कभी खत्म होगा ये. वो मेरे दोस्तों मुझे बोलने लगे ताजमहल बना रहा है तो दिखाना. Are we ranting? Are we laughing about it? Are we crying about it? Are we कौन से stage पे हैं emotionally हम? We're doing everything about it. We're We're just waiting for it to end yeah. so that, you celebrate the wins and learn from the losses. That's brilliant actually. मैंने अभी एक episode rant out कर लिया है solo. अच्छा, मेरा भी बहुत ज़्यादा बाकी है. बाकी है? हाँ. First, tell me about yourself. Do you come from a construction background? Not at all. Zero background about construction. Have you done a house before? Not really. Not really. I mean, I just did interior some house. That's a whole process. It's kind of like decorating and everything. rather than actually doing it from scratch. Yeah. So this was your first experience? First experience. अच्छा. तो कैसा रहा overall experience हम पूछेंगे नहीं. Better not to ask that question. हम summarize नहीं करेंगे ना सवाल को. हम आपसे बस बीच में कुछ सवाल करते चलेंगे. अब हमने establish कर लिया you don't know anything about construction. Yeah. When you started out. Yeah. When did you start the work? 2 years back. This is 21 or 22? 22 September. September 22. Yeah. और आज 2 साल बाद जाके वो घर पूरा हो गया है. पूजा हो गया. हाँ, पूजा हो गई है. सिविल वर्क कंप्लीट हो गया. इंटीरियर्स हम अभी सेटअप कर ही रहे हैं. But interior जो elements होते हैं वो लग गए हैं. Major labor work you can say is done. Yeah. So now you're setting up furniture, you're decorating now, right? Yeah. अब बारी आ रही है क्या बोलते हैं उसको होम फर्निशिंग्स की. Furnishings, yes. Right? Yes. So you've done your home. Yeah. अब वो देखो घर तो सेट करते रहेंगे. हाँ, right. रहते. Right. I started the work pretty much similar at the time when you started. I think before us. Maybe before I you. came to you for advice. This was when we 2021 then for me. I came to you in 23, but you were way ahead of us. At that point in time. Now I'm way behind you by the way. और 2000 के नोट बंद हुए थे I think. तब मेरा काम शुरू हुआ था just I think if I'm not wrong. No, that was long back. It was either I was planning to हाँ, at that point in probably, time. yeah. ऐसा कुछ हो रहा था. अच्छा. फिर वो डिले हुआ शायद उसी चक्कर में. But शुरू से शुरू करें. Okay, so when you started out, what did you look for first? Did you look for a contractor? Did you look for a designer? Did you look for an architect? Did you look for within yourself कि ये करना है या नहीं करना है? What was the beginning process? So the thing was, my husband came to me that, I need to renovate that house. Let's move to this new one. Yeah. I was like, we're not renovating, we're building a new building. Yeah. I don't want to shift into a renovation process. But he was like, कि नहीं, हमें society में रहना है, हमें बच्चों के लिए रहना है. So we need to renovate. Yeah. So I was like, because the house that I'm living in right now, we constructed 2 rooms. So I knew the process was tedious. Yeah. And I did not want to get into it. And I knew the ultimate result will not be the one that I wanted. And if I am getting into it, I wanted my dream home sort of, जो 10,000 pictures मेरे phone में हमेशा से over a period of 10 years इकट्ठे हुए थे. Yeah. I knew that will not be the end of it. But he was like, नहीं, यही करना. I was like, ठीक है. So he told me कि you don't have to take stress. You come into the part when interior comes in. I will get the whole civil thing done from the people I know. I was fine, okay, start करते हैं. Dirty job. हाँ, Let the man handle it. dirty job. He will handle the laborers and everything. He will handle the finer details. You take care of. I was like, okay, fine, ठीक. Nice. So we started off and Roles define हो गए एक दूसरे के कि I'm gonna do this, you're gonna do this. Yeah. So we got a contractor who does the renovation part for all the houses. Like he does the renovation thing and sells them to people. Okay. So we hired those people. They will do the civil part for us, the whatever requirements part and whatever the repairs anything they will do, and finer details we'll get into. So we hired those people. So they were doing the renovations. The end result, we saw their houses. No. So ये क्या करते हैं वो मतलब घर को renovate करके बेचते हैं? So like they buy the flat. Okay, then they redo it. They redo it. And then they basically sell it off. And then they sell it off. Okay. So in our process was like we told them our requirements. We met with their architect, whosoever they were working with regularly, and they had a passion. So the architect was a very renowned architect, had awards in their
names in their PR. in their so we visited their office and there were like 20 trophies and Yeah. they were celebrated architects. So the first impression was कि यार ये तो बहुत ही अच्छा होगा. इनको तो I mean इनको तो आता है. yeah. बहुत अच्छा Instagram page and बहुत अच्छी websites and everything and award winners and everything. We're like हाँ मतलब and What was the meeting the like? The meeting was very smooth. मैम आप अपना requirements बताओ sir, आप अपना requirement बताओ, सारी detailed requirements, we'll do this, we'll do that. They discussed your dreams and aspirations about the house. Aspirations and okay ma'am, we'll get this done, we'll get this done. Not getting into the integrities of the part because we were very, very naive into this industry and we didn't know the nitty-gritties of the dirty aspects of whatever happens behind the scenes. Absolutely, yeah. We thought the contractor will take care of the dirty things, architect will design as per our needs and things will get executed. Yeah, vendors मिलते जाएंगे, काम होता मिलते जाएगा. जाएंगे and होता जाएगा. But वैसा कुछ हुआ नहीं eventually. So we started off and we also did not know the process कि बाकी लोग जो आसपास के हैं वो कितना कोऑपरेट करेंगे आपके उस काम में. Yeah. So that was one major hurdle that we Yeah. encountered and you have to- nobody told you. And you have to live with those people eventually. जब You खड़े have हो to जाएगा. live and nobody tells you like they say no कि हो जाएगा तो सब बोल देते हैं. Yeah. Nobody tells you कि क्या दिक्कत आएगी और क्या नहीं होगा और कैसे होगा. Yeah. So that made us cry the most. And that was the reason why the architect also got off from the project, why the contractors also could not complete it as per our aspirations. Yeah. Because there was a lot of chaos happening. Yeah. So a mix of a lot of things. Yours is I know it. So that's yours is a second, third, and terrace, right? Duplex, Similar to what I'm yeah, doing. Yeah. Yeah. So that was there. And so we started off initially. तो जो extensions थे वो हो गए. First 3 months and we started off in September. Construction ban happened due to the pollution and everything. Yeah. October, November, December that happened. Yeah. So 3 महीने वो काम बंद रहा. काम शुरू करते ही एकदम काम से शुरू होते ही जरा सी एक्साइटमेंट ऊपर की and it went down. and it went down. वो बंद हो गया. Yeah. And in that process, और हमने ये प्लान किया था कि in those 3 months का process, we will finalize our 3Ds and our architectural plans and everything. 3 महीने अब कंस्ट्रक्शन प्लान लगा तो आपने सोचा कि डिजाइन फाइनल कर लेते हैं एटलीस्ट हम लेआउट्स अपने पूरे अच्छे से पूरी डिटेल आउट कर लेते हैं. It was not a bad thinking actually. Yeah. So, but being naive again, for example, 3D आया, first 3D आया, we did not like it. क्योंकि हमने आर्किटेक्ट को बोला था कि हमें वास्तु के हिसाब से घर चाहिए. Okay. So she made one 3D which was not up to our vastu specification. Okay. And Did you hire a separate vastu consultant? No. She told us on the first foremost thing that she knows vastu and she'll design it basics she will take care of. Most so we were designers okay. know. Most हाँ, designers so we know. were okay with it. कि ठीक है बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें भी नहीं जाना. हाँ, fair enough. But जो basics थे, they were not covered in that at that point in time. So, and being the renowned celebrity architect that she was probably not very comfortable doing a back and forth on the 3Ds. कि मैंने जो final कर दिया, that is done. अब छोटा मोटा details जो है वो आप अपने आप करवा लो. Sort of. So reworking and everything. She was not Reworking everything interested. she was not interested in. Multiple sit downs, not multiple meetings, yeah. right? And we did not know कि अगर हमने at this point in time सारी details नहीं clear करी, हमने सारी चीजें पेपर पे नहीं ली, तो कितने रोल आउट्स होंगे और कितनी डिफिकल्टीज हर कॉन्ट्रैक्टर और हर पॉइंट इन टाइम के साथ होंगी. Exactly. क्योंकि We सारे did not- डिसीजन पेंडिंग रह जाएंगे. Exactly. और फिर बाद में? वो हमें पता ही नहीं होंगे ना. फॉर एग्जाम्पल माई किचन वॉज प्लान्ड, आई वॉन्टेड इट इन साउथ ईस्ट Yeah. एंड शी प्लान्ड इट इन द नॉर्थ ईस्ट. ओ बाबा. सो आई टोल्ड हर कि नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, या तो साउथ ईस्ट करो या नॉर्थ वेस्ट करो. Okay. So she told me कि अच्छा ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला कमरा हम हटा के नॉर्थ ईस्ट में कर देते हैं, आप इधर किचन प्लान कर लो. नो प्रॉब्लम. मैं 3D बाद में भेज दूंगी, मैं ड्राइंग्स बाद में भेज दूंगी आपको, या आई एम इन द प्रोसेस ऑफ इट. Okay. आई वाज लाइक ओके फाइन, ठीक है. अब क्योंकि जैसे ही कंस्ट्रक्शन बैन हटा, हमें ये था कि हम काम को स्ट्रेच कर लें, बिकॉज वी वांटेड टू शिफ्ट दिवाली 2023. तो वो काम उस टाइम पे हमने शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, 3D आ जाएगा, कोई बात नहीं, ड्राइंग्स आ जाएंगे, 7-8 महीने लगेंगे. 9 महीने स्टार्ट कर लगेंगे. लेते हैं. Yeah.
we started off. अब As per discussion की as per ये room discussion यहाँ कि move ठीक कर है ये देते यहाँ हैं। मूव कर देते हैं. Yeah. We did not have it on paper. Hmm. उसके बाद ये शुरू हुआ प्रोसेस एंड दैट वाज द मेजर लूप होल कि हमने उस टाइम पे अपनी सारी ड्राइंग्स सारे 3Ds फ्रीज नहीं किए. And the architect did not come back to you with the rework? शी डिड बट वही है ना कि उसमें अब स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो थी वो चेंज हो चुकी थी और उन्होंने बोल तो दिया कि इसको शिफ्ट कर लो बट द नुआंसेस कि कहाँ गाटर डल सकता है कहाँ दीवार तोड़ी जा सकती स्ट्रक्चर की भी तो इंटेग्रिटी रखनी है. है वो नहीं थी क्योंकि उस पर वर्क हुआ ही नहीं था. अब जब वो कॉन्ट्रैक्टर उसको तोड़ने गया दीवार को, मैम यहाँ तो किचन बन नहीं सकता, यहाँ तो ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, यहाँ कॉलम आ रहा है, यहाँ बीम आ रहा है, ये दिक्कत है, वो स्टडी हुई नहीं थी. तो वो जो प्रोसेस होता है वो दैट प्रोसेस गॉट डिलेड एंड आई हैड नो क्लू हाउ टू गो अबाउट इट. That is one of the biggest challenges in renovation here. एग्जैक्टली, It's a huge challenge. ह्यूज Structural चैलेंज. अब changes. वहां पे पाइप्स आ रहे थे, यहाँ पाइप नहीं डल सकता, यहाँ पे गटर की लाइंस नहीं है. सो दोज इश्यूज वर मेजर एंड आई हैड नो क्लू हू टू आस्क. आर्किटेक्ट को फोन करो, हाँ भेज रही हूँ, हाँ भेज रही हूँ. कॉन्ट्रैक्टर खड़ा हो जाता था, मैम मेरी सीमेंट खड़ी है यहाँ पे, मेरा लेबर खड़ा है, मैं क्या करूँ. Yeah. नेबर्स खड़े हो जाते थे, आपके 15 दिन से यहाँ पे कूड़ा फैल रहा है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते. Then RWA. वो एक अलग कहानी. सिचुएशन होती थी कि Yeah. व्हाई डिड वी स्टार्ट ऑफ इन दिस प्रोसेस. Yeah. एंड मैं हर बार पंकज को यही बोलती थी कि क्यों व्हाई Why आर वी we doing डूइंग this? दिस. और फिर ये होता था कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कम स्क्वीज कर लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं करेंगे, छोड़ दो. मैंने कहा हम क्यों बना रहे हैं, हम जिस घर में रहते हैं वो इस घर में बेटर है, बहुत अच्छा है. नहीं चाहिए ये. Yeah. इन द चलते गए बट वही था कि जैसे भी इन द प्रोसेस आई थिंक आई बिकेम एन आर्किटेक्ट. कि रोज गूगल करते थे, रोज इंस्टाग्राम करते थे, रोज यूट्यूब करते थे कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी. एंड इन द प्रोसेस वो टूटती भी थी, बनती भी थी, टूटती भी थी. और अल्टीमेटली मुझे हर कॉन्ट्रैक्टर ने बोलना शुरू कर दिया, मैम आपने बोला था इसलिए हमने ये काम ऐसे किया. ओ बाबा, दैट इज द वर्स्ट. सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उसमें. हाँ. बहुत बहुत इरिटेशन होती है उसमें. तो ये प्रोसेस ऐसे चला शुरू हुआ कि आपने बोला मैम तब हमने ये ऐसे किया. तो मैंने बोला भैया गाटर आप डालते हो, आपको पता है कि अंदर 10 फुट जानी चाहिए, तो आपने क्यों नहीं डाली. आपने बताया नहीं हमें. ये हम मैंने कहा मतलब ये मुझे थोड़ी पता है, मैंने तो सिर्फ ये बोला था यहाँ किचन बनाना है. अब गाटर कितनी बड़ी जाएगी, कितनी छोटी जाएगी, तो आपको देखना है. You never tried to look for another architect later on? So the thing was कि we had this pact कि वही था ना कि कॉन्ट्रैक्टर हमारा देखेगा काम और आर्किटेक्ट ओवरसी करेंगे. एंड इन द इनिशियल स्टेज आई डिड नॉट नो कि ये इतनी प्रॉब्लम आने वाली है, मतलब प्रोसेस इतना टीडियस होने वाला है. और वो एक्साइटमेंट बहुत थी हमें शुरू में तो कि यार हमारा घर बन रहा है, हम तो सब कुछ कर लेंगे. धीरे 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 यू रियलाइज्ड कि इट्स अ वेरी टीडियस थिंग टू डू. और उस प्रोसेस में क्या था कि दीवारें बन रही थी, अब दीवारें भी टेढ़ी बन रही थी. तो होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मैम प्लस्तर होगा तो सीधी हो जाएगी, पीओपी होगी तो सीधी हो जाएगी, पेंट होगा तो ठीक हो जाएगी. वो नहीं होता. और मैं हर बार बोलती थी भैया जिस चीज की नींव ही ठीक नहीं है वो बाद में कैसे ठीक होगी, पॉसिबल नहीं है. मैम आप देखना आपने इतने घर देखे. एंड दोज कॉन्ट्रैक्टर्स एंड दोज सब कॉन्ट्रैक्टर्स वर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, लाइक वॉट एवर प्रोजेक्ट आई सॉ इवेंचुअली दे लुक्ड ओके, बट आई डिड नॉट नो द न्यूआंसेस कि अरे यहाँ दीवार में दिक्कत है. मतलब ऊपर से घर देख लिया और सारी चीजें अच्छी लगती है ना, बट 5 मिनट घर देखने में और उसमें रहने में और उस प्रोसेस को देखने में रियलाइज कि यहाँ पे कितने सारे फॉल्ट्स हैं. टेढ़ी दीवार का एक बताऊं. टेढ़ी दीवार का मेरे घर में क्या हुआ, जब पीओपी हुई ना, माय सिविल कॉन्ट्रैक्टर टेल्स मी कि सर आपके पीओपी वाले ने तो काम ठीक नहीं किया. मैंने कहा यार तूने पीओपी वाले का काम कैसे चेक किया, वो तो दूसरा बंदा है, दूसरी एजेंसी का. उसका पीओपी वाला नहीं लगाया था. सो ये वाज सेइंग कि मैं जिसको ला रहा था आपने उसको नहीं लगाया, आप देखो दीवार टेढ़ी है. मैंने कहा अच्छा दिखाओ. तो उसने वो होता है ना कि वो सूत सावल लगा के ऐसे दीवार में लगाया उसने. अब उसने सही नहीं लगा के दिखाया मुझे नॉलेज नहीं थी. राइट. तो आई गॉट मिसलेड कि यार ये तो सही नहीं है, दीवार शायद टेढ़ी है.
Then I called the other guy, मैंने फोटो खींच के भेज दिया उसको, and the other guy came around, उसने लगाया तो वो सीधी थी। अब मैंने इसको फिर बुलाया, मैं कहा तू दिखा सीधी कैसे, इसने जैसे लगाया वैसे सीधी नहीं थी। तो तुम दो लोग एक ही चीज चेक कर रहे हो, हाँ, और तेरी सीधी आ रही है दीवार और उसकी सीधी नहीं आ रही है। right. And eventually I realized कि one of the guys was right, दीवार सीधी नहीं थी उस मोमेंट में, और वो दीवार आज तक टेढ़ी है। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर कितना भी अब आप कर लीजिए काम, नहीं हो सकता, वंडिलेशन नहीं जाती। तो जब वो दीवार टेढ़ी है और बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में वो दीवार टेढ़ी है, तो अब क्या हो रहा है पता है घर में, अब उसके ऊपर लूवर पैनलिंग हो रही है। सेम यार, हमने भी यही किया, हमने भी यही किया। मेरी एक वॉल 4 इंचेस टेढ़ी है, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड उसमें 4 इंचेस का अंडुलेशन, साइडवेज। एंड अब हम, और जब हमें ये कब रियलाइज हुआ, जब हम वार्डरोब के मेजरमेंट देने गए। एग्जैक्टली, वार्डरोब का मेजरमेंट देने वाला भी ले गया मेजरमेंट उसको भी नहीं पता चली। एक दिन खड़े खड़े मुझे रियलाइज, मैंने उसको बोला जब कारपेंटर लगा, मैंने कहा भैया यहाँ पे हिडन स्टोरेज बना दो, देखी जाएगी। तो वो बोलता है मैम इसमें तो 4 इंची का फर्क तो है ही, मैं 2 इंची का और निकाल देता हूँ, 6 इंची में आपका अच्छा सा स्टोरेज यूनिट बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा भैया ये भी दिक्कत है। वार्डरोब वाले को बुलाया, भैया ये क्या मेजरमेंट लेके गए हो कि मतलब 6 इंची का फर्क है, कितने फिलर लगाओगे? मुझे कब पता चला, पता है जब वो उसने कारकस लगाया, तो कारकस नीचे से तो दीवार को हक कर रहा है, हाँ, और ऊपर से तो गैप छोड़ दिया उसने। हाँ। मैंने बोला बॉस ये तेरा कारकस या तो टेढ़ा है, कहता सर दीवार टेढ़ी है। बोला दीवार टेढ़ी है, तेरा कारकस सही नहीं लगा तो क्या कर रहा है? एंड आई आर्ग्यूड विद कि ये कैसा लॉजिक है, फैक्ट्री से बन के कारकस आया है, मस्ट बी स्ट्रेट एंड यू डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी टेढ़ा। कारकस तो ठीक होगा, डजंट मेक सेंस। तो फिर हमने दीवार दोबारा चेक करी, इट वाज जस्ट कंप्लीटली ऑफ। उसने वो एक बहुत सिंपल देसी तरीके से लकड़ी का एक फट्टा लिया स्ट्रेट, उसको लगा के दिखाया देखो गैप है, and he drew a pencil line straight and I saw a triangle being formed like this. I'm like ये तो दीवार टेढ़ी है, और उस पे टाइल्स भी लगी हुई है दीवार पे, क्योंकि कारकस ऐसे नहीं लगाया मैंने, पहले बेस टाइल लगाई थी, वो बेस टाइल में भी कवर नहीं हुआ दीवार का। तो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। हाँ, एंड पता है मतलब ये होता था ऋषभ, आई कुड सी इट फ्रॉम माई, आई बीइंग एन आर्टिस्ट, आई नो कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, और मैं उनको ना खड़े होकर बोल देती थी भैया दीवार टेढ़ी है, बट उनको लगता था बीइंग अ वुमन ये तो पागल है, इनको कुछ नहीं पता। You think if Pankaj would have said that to them, they would have taken it seriously? It would have made an impact. Eventually, I brought him later on. मैंने बोला you have to scream and shout, नहीं तो ये मेरी नहीं सुनेंगे, बिकॉज वो मुझे रोज पागल बना देते थे कि इनको तो नहीं पता। और वो टेढ़ा, वो वही सेम वो साहौल पकड़ते थे, टेढ़ा उसको दिखाते थे, देखो मैम दीवार तो सीधी है। मैं पंकज को कितनी बार लेके जाती थी, सर देखो सीधी तो है। अब जब वो घर में सारी चीजें आने लगी है, जैसे जैसे फर्नीचर आने लगा है, तो दिखती है कि वो हर एक दीवार टेढ़ी है। पीओपी वाले ने वीडियोस बना के, पीओपी वाला जब आया उसने दिखाया कि मैम मैं 2 इंची की पीओपी कैसे चढ़ाऊं, दीवार तो टेढ़ी है। And that point in time, the contractor has exited, और उसने पैसे अपने पूरे ले चुका था। और अभी भी मैं जब उसको याद करती हूँ हर पॉइंट इन टाइम में, तो पकड़ मुझे हमेशा यही बोलता है यार अब उसको याद करके क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, टेढ़ा है तो टेढ़ा है। Exactly. So I said this to one of my contractors. तो मैंने उसको बोला कि देख मैं तुझे याद करूँ ना तो मुस्कुरा के याद करूँ, काम ऐसा है करना। Exactly. I am not somebody who keeps grudges, you know, in my life, और मैं बांध चुका हूँ, ये एक नियम है मेरी लाइफ का कि मैं कोई गांठ बंदी नहीं छोड़ के जाना चाहता जब जाऊँगा। तो प्लीज काम करे तो ऐसा करना कि तुझे अच्छे से याद करूँ, ताकि तुझे कहूँ कि यार इनसे काम करा लो किसी और को भी, राइट? He thought it was just a thing because they hear this every day probably. Very true. जिसका भी वो घर करते हैं, शायद उनके लिए एक रेगुलर काम है। You know what he told me? Because in the heat of the moment आप नाराज भी होते हो, चिल्लाते भी सब कुछ होते हो, तो he said something कि सर इतनी सी गुस्से से और इतने से क्या बोला था पता नहीं सर, इतनी सी नाराजगी से अगर हम काम करना बंद कर देंगे तो काम हो गया। इसका मतलब हम रोज सुनते हैं ऐसी बातें। Exactly. हमें तो आदत है। So it's just something that they are not changing about themselves to do the job properly first time. Right. And they're like ये तो used to है, नहीं तो काम ही कैसे करेंगे? Very true. अब आपने शुरू कर दिया सिविल वर्क, there were some issues within there, जहाँ किचन शिफ्ट करनी थी, पाइप्स डलने का इशू आया होगा, फ्लोर लेवल्स चेंज हुए होंगे, कुछ हुआ होगा। Right. Then there were structural elements जो रेनोवेशन जॉब में बिल्डिंग अपने आप बाद में दिखाती है आपको, क्योंकि बनी हुई दीवार में तो दिखता नहीं कि कॉलम का है। ये तो स्ट्रक्चरल इश्यूज हुए, राइट?
प्लम्बिंग में कोई चैलेंज आया या वाटर प्रूफिंग में कोई चैलेंज आया श्वेता? अब वही था कि हमारी ड्राइंग्स फिक्स्ड नहीं थी. या अब फॉर एग्जांपल मुझे आर्किटेक्ट ने जो ड्राइंग दी फॉर माय प्लम्बिंग थिंग्स, अब जहां उन्होंने बोला कि टॉयलेट सीट होनी चाहिए, वहां उस प्लम्बर को पता चला कि यहाँ से पाइप नहीं जा सकता. ओके, क्योंकि वो उस पाइप को उस तरीके से स्लोप नहीं दे सकता या जो भी है. हाँ, फेयर एनफ. दैट वाज द इशू. या आई कॉल्ड अप माय आर्किटेक्ट कि ये तो यहाँ नहीं होगा, आप प्लीज चेंज ड्राइंग भेज दो. वो बोल रहा है यहाँ लगे. अब वो चेंज ड्राइंग नहीं आई ऑन दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि 20 दिन लगेंगे, 25 लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, जब भी लगेंगे तब तक ड्राइंग आएगी. और प्लम्बर इतने दिन खड़ा नहीं रहेगा फॉर दैट पेंडिंग डिसीजन. Your architect, I want to talk to you about your architect a little bit. Award-winning architect, right? Must have a good team, right? Did they assign somebody particularly to you So yes, or so they communication? did. No, so she was communicating on her own Directly with you? directly. She Okay. did not want her team people to be involved. Okay, So people used to come, take measurements and everything and go. okay. But one-on-one interaction was only with the sole owner of the The main principal architect. principal ठीक है. architect. And she used to tell me कि अच्छा ठीक है, अभी ड्राइंग आ रही है, अभी ड्राइंग आ रही है. Now the plumber can wait for 2 days, 3 days, 4 days. He उससे ज्यादा cannot नहीं wait रुकेगा for कोई. beyond that. नहीं रुकेगा. कोई बात नहीं भैया, डाल दो भाई, अब यही डलेगा. बात तो हो गई फोन पे, डाल दो, कोई बात वो नहीं. रोता रहेगा कि मेरी चाल रुक गई है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? अब प्लम्बर की चाल रुक गई है तो बाकी मल्टीपल लोगों की भी चाल रुक गई है ना. Yeah, टाइल्स खरीदी भी पड़ी हैं, exactly. ठीक है, सारा सामान पड़ा है, साइट में इतना कचरा पड़ा है जो आपको डंप करना है. Yeah. बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी जो चीजें होती है वो मल्टीपली कनेक्टेड होती हैं एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट इट नो मैटर व्हाट. यू कांट वेट फॉर द ड्राइंग टू कम. कितने ट्रक मलबा निकला? सच बोलना, मोटा मोटी. पता नहीं, मतलब लाइक एटलीस्ट हिसाब 50 नहीं है तो ना? होंगे, हिसाब ही नहीं है, मतलब 50? कितना. हाँ 50. मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने मुझसे लिए 33 ट्रक्स का पैसा. सिविल वाले कॉन्ट्रैक्टर ने मुझसे लिए थे 15 ट्रक के पैसे. पिछले 4-5 दिन के अंदर 3 ट्रक्स मैं बेच चुका हूँ. पहुंच गए वहीं, है ना. और ये रेनोवेशन जॉब है एक डुप्लेक्स फ्लैट की जो एक्सटेंड भी नहीं किया है मैंने. एग्जैक्ट. इट इज जस्ट सो मच फन टू सी दीज थिंग्स. प्लास्टर हो रहा था, एक ना सर्वेंट का छोटा सा रूम निकला और उसके साथ में एक वॉशरूम निकाला, तो अब उसका प्लास्टर हो रहा है. अब ट्रक तो जा चुका मलबा लेके, अब वो मसाला नीचे गिरा रहे हैं ऑन फिनिश्ड टाइल्स, क्योंकि टाइल वर्क मैं पहले करा चुका था टेरेस पे. तो मैंने सोचा कि एक मैं छोटा सा बाथरूम और वो निकाल देता हूँ, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम. एंड माय नेबर्स वर नाइस एनफ एंड वी डिड दैट. अब जब वो मसाला गिर गया तो मैंने इनको पूछा कि आपने टाइल के ऊपर शीट क्यों नहीं लगाई? कहते सर आपने बोला नहीं. वही से वाली बात है, नहीं तुम ऐसे ही करते हो सब जगह. फिनिश्ड टाइल्स, वुडन फिनिश की प्लैंक टाइल्स लगी हैं हेरिंग बोन में. अब मुझे पता है वो साफ नहीं होगी. सो आई अब टेल द मेन कॉन्ट्रैक्टर कि यार मैंने तुझे इसी के लिए रखा हुआ है, तेरे 2 साइट सुपरवाइजर्स है, एक नहीं है 2 है. और मैंने उसको पूछा यार ये क्या है? कहता है यार टेंशन मत लो, सब धुल जाता है, सब टाइट साफ हो जाएगा, सब साफ. तेजाब डाल दूंगा मैं कहा वो अपना निशान, इट्स एसिड. एसिड. मैं कहा भाई तू क्या बोल रहा है? कहता हाँ सब धुल जाएगा, टेंशन मत लो. मैं कहा अच्छा ठीक है, आई रेस्ट अश्योर्ड. ठीक है, सब हो गया, दरवाजे लग गए. मैं कहा टाइलें धुलवा दे, अभी कराता हूँ, महीना हो गया. आई थिंक ही इज स्कैर्ड कि नहीं होगा. हाँ चिल्लाएंगे, 100% चिल्लाऊंगा. ही नोज इट. और अभी जो मेरा घर का मेरा फेवरेट पार्ट है विच आई डिडंट वांट, तो इनफैक्ट मैं एक पहले प्रीवियस एपिसोड में रैंट आउट कर चुका हूँ कि मुझे अपने घर में टेराजो फ्लोरिंग चाहिए थी, जिस घर में मैं बड़ा हुआ था. व्हाइट सीमेंट टेराजो. आई लव दैट. इट वाज ब्रिलियंट फॉर द समर्स आल्सो, इट वाज ग्रेट इन द विंटर्स आल्सो, एंड इट हैज दिस एयर ऑफ फेमिलियरिटी, एंड आई डोंट वांट इट टू चमक टू मच. मेरे लिए वो अच्छा है. फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी वाज कि भाई घर पुराना लगेगा, तुम सोच लो. मैंने कहा वही सेम डिजाइनर माइंडसेट कि तेरी नहीं चलेगी इसमें मेरी चलेगी. सो हमने इटालियन ला के लगा दिया. 350-400 रुपए का वो पत्थर है शायद, वो लग गया है जी. उसके ऊपर कितनी बार घिसाई होके वो कवर होके रखा है. जिस दिन वो कवर हटेंगे उस दिन वो भी रोएगा और मैं भी रोऊंगा, और हम दोनों खून के आंसू रो रहे होंगे, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि उसके अंदर क्रैक्स भी दिखेंगे. और इटालियन का नेचर होता है right, कि over the time it sort of leaves its space, it requires that treatment. very sure. पूजा कर ली मैंने घर पे, क्योंकि दिवाली आ रही है. my mom was after my life कि तू कर क्या रहा है, घर की पूजा क्यों नहीं कर रहा? जिस जगह पर बैठ के हमने क्लीन करके पत्थर हम बैठे, इटालियन जहां मैं बैठा हुआ था, जहां हवन में आहुति दे रहा था, वहां मैंने देखा एक इतना बड़ा स्क्वायर पीस
इटालियन मार्बल का जॉइंट डाला हुआ है बीच में, Oh my God. कटिंग में, एंड आई सॉ इट और मैं स्वाहा स्वाहा एंड लाइक मैं कंप्लीटली पैसा स्वाहा कर चुका हूं इसमें, एंड दिस इज समथिंग दैट इज विजिबल टू मी व्हाइल आई एम सिटिंग हियर। और सिर्फ शायद एक 8x10 का बस हमने वो खोला था, बाकी खोलूंगा घर में क्या दिखेगा, अभी तो आई एम ड्रेडिंग इट। योर फ्लोरिंग इज डन? Yes. You've used marble as well? Yeah. So we did Vietnam white. Oh yeah, that's a So- good, very beautiful stone, yeah. It is a beautiful stone, but like when I kicked my initial architect out, I met a few architects, and to carry forward the process, कि अब मुझसे like my architect was not responding, initial कुछ तो architect. करना पड़ेगा। तो मैंने 1 साल तो चलाया जैसे तैसे करके, उसके बाद I gave up. I was like I need help now. अब नहीं हो सकता मेरे से, ये इंटीरियर्स में बहुत गंदा काम हो जाएगा अगर मैंने इस माइंडसेट के साथ अब आगे काम किया, बिकॉज आई वाज वेरी टायर्ड। सो आई स्पोक टू 2-3 आर्किटेक्ट्स एंड उन्होंने बोला मैम आजकल वाइट कौन लगाता है, वाइट के साथ तो हम इंटीरियर्स डिजाइन ही नहीं आप करते। ला चुके थे? हाँ, मैंने लगवा लिया था बस पत्थर, और वो पत्थर लाने के लिए आई वेंट टू किशनगढ़ ट्वाइस, and my husband was very very angry with me because I used to start at 4 in the morning to go to Kishangarh Yeah. and come back at night at 2. और imagine the irony, हम फर्स्ट टाइम गए तो हमें लगा यार ये 800-900 रुपए का पत्थर, पागल हो जाएंगे, कहाँ जाएगा हमारा बजट। फर्स्ट टाइम तो हम सिर्फ देख के आ गए, हमने लिया नहीं। Yeah. फिर हमने पूरे इंडियन घूमे, कोई बोलता है इटालियन लगाओगे तो रोओगे, कोई बोलता है टाइल लगाओगे तो रोओगे, फिर लगा यार कोई बात नहीं, इसी में पैसे झोंक देते हैं, रोना तो है ही। रोना तो है ही। फिर किसी ने मुझे ये चीज बोली कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये भी मैंने बात कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अब लगा ही लेते हैं, वाइट का इतना मन है तो कर लेते हैं। You wanted a white floor. वाइट फ्लोर, Yeah. मतलब आई वांटेड अ स्पॉटलेस फ्लोर। अब इंडियन मार्बल तो मिल ही रहा था, Right. और इटालियन में जब इतनी दिक्कत थी और ये भी नहीं पता, वंस यू डोंट नो द वेंडर, आपको नहीं पता कि कौन आपको सही चीज दे रहा है नहीं दे रहा। Absolutely. एंड यू, अब मुझे लगता है कि घर बनाना शुरू करने से पहले आई थिंक आपको 6 महीने तो ना पूरी इंडस्ट्री घूम लेनी चाहिए यही करो पहले रिसर्च। बिफोर फाइनलाइजिंग द थिंग, बिफोर फाइनलाइजिंग योर बजट, बिकॉज नोबडी टेल्स यू दिस इज गोइंग टू हैपन। आप बजट लेके चले थे 50 लाख का, वो कब 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ पहुंच जाए आपको नहीं पता। और पता है फिर ये लगता है कि आप जब चीज लगा रहे हो तो अच्छी लगा लो, खराब लगा के तो कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपने रिसर्च नहीं करी है, हु इज गोइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू, यू डोंट इवन नो। Yeah. और वो बोल तो देते हैं कि BOI बना लो, BOI बना लो, वो BOI नहीं बन सकता। टेबल पे एक दिन बैठ के BOI नहीं बनता। नहीं बनेगा। You have to go into the industry, you have to see what fits your budget, you have to see what you like, Yeah. and accordingly design the house. 3D बनने से पहले अपनी मार्केट रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता था, पापा ने जब मार्बल लगाया था घर में तो 125 रुपये का लगाया था। अब हम जब मार्बल मार्केट में घूम रहे थे वही 5 गुना हो चुका है, 6 तो गुना वो हो चुका है। 5 गुना हो चुका है। बजट समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या पत्थर लगा रहे हैं। Yeah, exactly. सो दैट वाज द थिंग। अब हम जब किशनगढ़ में पत्थर में साइन ऑफ करके आई, मेरा जब पत्थर आया तो वो लॉट ही नहीं आया जो जिस पे आप साइन करके आए थे। जिस पे मैं साइन करके आई थी। मतलब उसकी सिर्फ, मेरे को क्या हुआ, दुकान वाले ने बोला मैम आप इस लॉट पे साइन कर दो, ये सिर्फ 1000 फुट माल है, इसका सेम लॉट जो है वो मेरे गोडाउन में पड़ा है, मैं आपको साथ में भेज दूँ। एंड आई वॉज ऑन टाइम क्रंच क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे जब तक मैंने मेरा पत्थर फाइनलाइज किया, और मुझे घर वापस आना था बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू ट्रैवल इन द नाइट एंड टेक द रिस्क। और पंकज ने मुझे बोला कि तू 5 बजे वहां से निकल जाइए नो मैटर व्हाट। Yeah. एंड गोडाउन जाके उस लॉट को चेक करना was not practically possible. It would have taken me another 2 hours in Kishangarh. Yeah. And that person was a trusted source from a extended family member. Okay. जहाँ से मैंने पत्थर लिया था। मैं थॉट ठीक है यार, इतनी क्या चीटिंग करेगा, मतलब एक लॉट तो मैंने साइन कर ही दिया, बाकी का उसके साथ आ जाएगा। मैं करके निकल आई। जब 15-20 दिन बाद वो पत्थर आया और जब वो उतर गया साइड पे, मैंने देखा यार ये तो मेरा सिग्नेचर ही नहीं है इस पे। मैम वो लॉट तो किसी ने, मतलब वो 10 पत्थर जिस पे आपने साइन किए थे वो किसी ने ले लिया, लेकिन बाकी ये पीछे के लॉट का पत्थर तो सारा मैंने आपको भेजा ही है। एंड दैट पत्थर केम इन 3 लॉट्स एंड आई वाज फ्लैबरगास्टेड। मैंने बोला ये मेरे साथ क्या हो गया, मतलब मैं 2 बार किशनगढ़ जाके आई हूँ और मुझे भी मेरे पास पत्थर चाहिए था, वो नहीं आया।
मैं आपको अश्योर करता हूँ ये सेव है, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, बहुत सारी स्टोरीज थी, बट आई हैड नो ऑप्शन बट टू कीप इट, क्योंकि एक फैमिली रिलेशन थे। दूसरा, आई हैड नो ऑप्शन बट टू पुट दिस कि अब ये वापस जाएगा, वापस आएगा, और मेरी साइट उस पॉइंट इन टाइम पे इतनी ज्यादा स्टैग्नेंट थी कि अगर आज पत्थर नहीं लगाया तो कंस्ट्रक्शन बैन फिर लग जाएगा अक्टूबर में और मेरा काम फिर रुक जाएगा। Do you think you should work with known family references? So this is another a big loophole. अगर आप नोन के साथ काम करो तो एक ट्रस्ट फैक्टर आपके अंदर शुरू में रहता है कि शायद ये चीज ठीक देगा। Yeah, but if it goes wrong, you can't say anything also. Exactly, but तो अननोन के relationship- साथ लो तो सारी इंडस्ट्री आपको फूल कर ही रही है। नहीं, एटलीस्ट आप अननोन में फाइट तो कर लोगे। कितनी फाइट कर लो? तो कैसे चूज करें किसी वेंडर को? नाउ ओवर 2 years of your home building experience. आपके रिव्यूज जो है वो सब कुछ पेड है गूगल पे। Yeah, that's true. आपके जितने भी मार्केट में प्लेयर्स हैं, दे आर सिटिंग गिविंग यू डिस्काउंट रेंजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 50%. Yeah. All your architects have their own commission percentages जिन दुकानों पे वो आपको लेके जाते हैं। आप किसको ट्रस्ट करो? एंड यू हैव अ टाइम क्रंच कि आप 25 वेंडर्स के पास तो घूम नहीं सकते। फिर क्या करें? बना बनाया घर खरीद ले। बेस्ट बनाने का बीड़ा लो ही मत। वो एटलीस्ट यू डोंट नो ना व्हाट You don't know what's गोस going in. इन, व्हाट गोस इन। You know, उसमें मेरी मॉम का व्यू पॉइंट बड़ा उल्टा है। She will never live in a house which she's bought built from someone else. You know what I mean? हालांकि हम कहने के लिए तो मैं तो रह ही रहा हूँ, यू नो, डीडीए में रहते हैं हम लोग, चलो डीडीए ने बनाया, बट वो उन्होंने पूरा रिफर्बिश अपने हाथ से किया। 2 घर मेरी मदर ने डिजाइन किया, उन्होंने खुद करे। ये वाला जो मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ, बट आइडिया ये है कि शी बिलीव्स इन द एनर्जी दैट यू पुट इन विद इन योर होम। इट्स काइंड ऑफ लाइक प्रिपेयरिंग फूड फॉर योर फैमिली, राइट? राइट। उनका फंडा ये है कि अगर आप खुश मन से खाना बना के खुशी से किसी को खिलाते हो तो वो शरीर में अच्छा लगता है। राइट। शी दैट पर्सन, राइट? Right. बीइंग अ टिपिकल इंडियन मदर, वो प्यार से परोसा खाना ज्यादा शरीर को सूट करेगा, एंड इट विल नेवर मेक यू फॉल सिक। तो घर का भी यही वाइब मानती है। वो कहती है यार देखो, 2-3 चीजें हम सैंक्टिटी मानते हैं अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में। वन इज वर्क, वर्क इज सेक्रेड, सेकंड इज होम। राइट। फैमिली एंड होम सॉर्ट ऑफ इंटरट्वाइंस टुगेदर, राइट? दैट इज वेयर यू बिल्ड योर लाइफ टुगेदर। राइट। तो वो ना किसी और का बना हुआ घर में खरीद के ऐसे रहना नहीं चाहती। बट आई वाइब विद दैट पॉइंट। या मेरे साथ क्या हुआ था, सो लाइक वी वर डूइंग सम छोटा सा काम, तो वहां पे ना ईंटों की जरूरत थी। तो जो पुरानी, मतलब वी वर ऑन अ फाइनलाइजिंग स्टेज, ओके। तो उस टाइम पे 5-6 ईंटों की जरूरत थी। सो बंदे को बोला भैया नीचे से ईंट लिया। तो जो फ्रेश ईंट आती है ना, वो तो बड़ी साफ सुथरी होती है। या दैट ईंट वाज प्रोबेबली बहुत दिनों से एक जगह पड़ी थी और उसमें कुछ कीड़े लग गए हैं फॉर एग्जाम्पल, या उसके साथ कीड़े थे। वो जैसे ही वो ईंट उठा के ऊपर लेके आया घर में और वो उसको लगाने लगा, आई हिट दैट पॉइंट। मैंने बोला भैया ये क्या लगा रहे हो? ये इतने सारे कीड़े हैं इसके अंदर। तो लाइक कोई बात नहीं मैम, सीमेंट लग जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई, आप ये ईंटों को वापस रखो, ये कीड़े वाली ईंट नहीं लगेगी। बिकॉज यू नो आई सॉ कि अगर वो उस पर सीमेंट डाल देता वो सारे कीड़े वही मर जाते उसी के अंदर। एंड दैट वाइब ऑफ दैट प्लेस वुड हैव प्रोबेबली कॉम्प्रोमाइज्ड कि मैं कीड़े को मारते हुए कैसे देख लूं। उनके लिए तो रोज का खाना है। We've grown up as vegetarians. We've lived that life, you know, where अगर एक्चुअली सच बताऊं कि चींटी भी मारनी थी, नहीं मार पाते, हम ऐसे थे, हमें ये सिखाया गया था। तो ये तो नहीं हो सकता, अपने घर में नहीं लग सकता। तो बिल्डरों का तो रोज काम है ना वो करने का, तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। They will not waste material. हाँ, वो ये नहीं करेंगे कि वो ईंट को फेंक नहीं लिया। राइट। There are some good ones I know of who will probably pay attention to such things, but वो हर इंसान ऐसा नहीं करता, स्पेशली सिविल कॉन्ट्रैक्टर जिसने विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है बिल्डर से। वो तो अपनी जॉब पूरी करके, स्ट्रक्चर पूरा करके बाहर निकलना चाहते हैं। They don't go into those details कि हम किसको क्या कर रहे हैं। एंड when we did our वास्तु पूजा, the पंडित जी told me कि आप प्लीज उन सब जीवों के साथ प्रे करिए जो आपसे जाने अनजाने में मर गए होंगे इस घर के कंस्ट्रक्शन हमारे कि because we have destroyed their home to build our home. Oh yeah. So that is the vibe. But by the way, ये होती है जब भूमि पूजन भी होता है, right? तब भी होती है ये पूजा। Exactly. इस टाइम पे शुरू में। So why that? And I felt that because at that point in time I felt it. When Pandit ji told me, I realized it that you know that's true. That's true. And everything has that energy. Don't know harm. वो चीज है। चलो, अब ये फिर then you went to another architect later on. Did you find somebody good? So my take was कि I'm not going to a celebrity architect now. Yeah, somebody who gives me the time. Gives me the time.
interacts with me, knows what I want, and probably works with me and is not very pro commission thing. क्योंकि I had burnt my hands कि जिस भी architect के पास जाओ उनके 20-30% कमीशन थे. And to give you a funny fact, मैं बहुत सारे exhibitions में गई and I approached myself as an architect. Oh, nice. So I created a fake visiting card for me also. Okay. Just to see कि कौन कितना कमीशन खा रहा है और कौन सा वेंडर कितना कमीशन देने के लिए आपको तैयार है. I visited a few and I would not take names. I got 30, 40, 50% as the commission. Being an interior. Brands are offering. कि मैम हमारे आपके लिए प्राइस ही है, आप क्लाइंट को इतना कोट करना. Actually कई बार मुझे लगता है ब्रांड्स का ना वो तरीका है आर्किटेक्ट्स को जाने का. Not everybody goes for it, to be honest. Being in the construction material space, I know for a fact. आप बिलीव नहीं करेंगे, there's this architect. उन्होंने ना मुझे बड़ा अच्छा रेफरल दिया था, and I closed that order within like one of the Vasant Kunj farms. I'm like, I don't even know the guy. And he called me and he said, तेरा एक रेफरेंस मुझे कहीं से मिला है, तूने विंडोज अच्छी लगाई थी, तू जाके इनका काम कर दे. The guy I worked for is somebody who's a page 3 personality, and I'd seen him in pictures. Like, अरे वाह, and he's such a humble fellow, very sweet chap. Paid me on time, everything, and the job was done. He was very happy with it. Kuch bhi, zero challenge in that house, and it was a big ticket size order. So I went to thank the architect, and I actually didn't take anything for it. He had mentioned in passing that he loves reading, and I love reading too. मैं 3 books की एक series का लेके गया था उनके लिए. Like, ये तो क्यों लाया? First thing he asks me, and I said just a goodwill gesture. And I think it was last year Diwali के time की बात है. So ideally I would have given him a box of sweets or whatever. And I had learnt in my industry कि यार शायद ये ऑफर करना चाहिए कभी-कभी, right? And I've never done that. तो मैं बड़ा uncomfortable था. But I gave him those book sets and I said, I know that you like reading and I love these 3 books and I think you'll really enjoy them too. So he said, books मैं ले लूँगा, मिठाई का डब्बा. हाँ. Very, very clearly. I'm like, sir, but दिवाली है, मैं तो इसलिए लाया. कहता नहीं, मेरे को पता है तू क्यों लाया. And he was offended. I'm like, no sir, it's not something to like sort of bribe you about something कि नहीं ये commission दे रहा हूँ, मिठाई का डब्बा. So I took the very respectfully. I said, okay, ठीक है, I'm going to take it back, and I gave him the books, and which he kept very happily. And I realized that, okay, there are some people out there who will just bluntly say no as well. No, right. One of my favorite architects is Gurmeet Chauhan. I've grown up in front of him. He doesn't say anything. He just very simply says no. No second word, third word, nothing. No. I'm like, what are you saying no to? Do you even know what I'm saying? He's like, अगर तू जो मैं सोच रहा हूँ वो कह रहा है तो no. Right. Very bluntly. And he's doing massive jobs. अच्छे काम कर रहे हैं. No, that is what my learning was कि अब हम पता है क्या करते हैं initially जब project शुरू करते हैं, अच्छा ये architect कम ले रहा है, इससे काम कर लेते हैं. जो ज़्यादा ले रहा है ना, पहले बताओ, जिन brands ने आपको ऑफर किया as an architect, वो brands लगाए घर में आपने? नहीं लगाया. नहीं लगाया. So I worked with, initially I thought कि बहुत बड़े brands बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, but later on I realized कि वो सिर्फ marketing ही कर रहे हैं, probably. Right. That's why they are more visible and more prescribed. और मैंने उन लोगों से काम किया जो they were willing to give me time, they were willing to work with me, and small people who are growing in the industry and doing good work. Yeah. And I realized I was happy with it. Like first and foremost was you. मतलब I went to Fenesta, I went to Eternia, और मुझे रियलाइज हुआ यार ये क्या कर क्या रहे हैं ये, इनके मल्टीपल वेंडर्स हैं और मल्टीपल ये काम कर रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे. एंड आई वॉज वेरी वेरी ग्रेटफुल विद द फिनिश दैट यू डिड योर थिंग कि मुझे विंडो लगाने में एक दिन भी नहीं रोना पड़ा. नहीं पक्का? हाँ 100%. कैमरे पे तो नहीं कह रहा? नहीं फॉर श्योर. एंड मुझे इतने लोगों ने बोला था इससे लगा ले, इससे लगा ले, इससे लगाने. मैंने बोला एक ही काम मैंने इस घर में सही किया. One thing I was dreading, I swear. So I was hoping that there would never be a day where you or Pankaj call me and say यार ऋषभ यार काम नहीं हुआ ठीक. यार ये कैसे हुआ? So that's why I gave you the best person I can. Technically at least. नहीं, but the thing was that was a good decision क्योंकि you were very close to our site. You had all the team in Delhi itself, and you had a fabulous team to work with. So I'm glad that the job was done. जो precision के साथ उन्होंने सारा काम किया, that was मतलब वही एक चीज थी जिसमें मैंने देखा भी नहीं कि बंदा काम क्या कर रहा है, क्योंकि I knew it
that Rajiv ji was doing a wonderful हाँ, job. राजीव इज गुड, राजीव is good. So- मेरे घर पे भी वही कर रहा है. मैंने कभी उनको मतलब मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये विंडो ठीक लगेगी या नहीं. जहां मैं हर एक बंदे के सिर पे खड़ी होती थी काम करवाने के लिए, विंडो के कैटेगरी में मुझे नहीं खड़ा होना पड़ा. एंड आज की डेट में जो भी बंदा जाता है घर से, वो यही बोलता है यार ये विंडोज का लुक बड़ा अच्छा है. अच्छा, दे हैप्पी. वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. ये बताओ, पत्थर में परेशान हुए, फिर नेक्स्ट कहाँ परेशान हुए? तो ठीक है, पत्थर आ गया. फिर उसके बाद हम परेशान हुए टाइल्स में. टाइल वर्क वाज फॉर बाथरूम देन किचन. हाँ, और तो टाइल्स होगी ना? टाइल वर्क वाज, हाँ, बाथरूम एंड टेरेस किचन. फ्लोर. टेरेस फ्लोर दैट वाज लेटर, वो तो लास्ट में आया था. Yeah. तो अब क्या हुआ कि हमारे आर्किटेक्ट ने जो हमें टाइल्स बताई थी या जो हमने 3D में देखी थी, अब उनका बजट हमने कभी सोचा ही नहीं था. Yeah. तो उनको लगाने में इतना टाइम, इतने पैसे लगेंगे, ओके. और उनको अगर हम जगह जगह से खरीदेंगे तो वो इतनी महंगी आएंगी. अब एक The product was such that it had to be sourced from different places. no, so for example the color schemes and whatever we had Oh, yeah. finalized, so To they were find the same not thing. they were not available in your local markets या your known brands, for example कजारिया, सोमानी, ये वो. अब टाइल का हमारा माइंडसेट क्या होता है कि यार 100 रुपए से नीचे नीचे तक की टाइल आ जाएगी. Exactly. हम टाइल लेके आ रहे हैं 600 रुपए की, 500 रुपए की, 400 रुपए की, क्योंकि वो रेफरेंस हमें हमारे आर्किटेक्ट ने दिया था. टाइम क्रंच ऐसा था कि एक वॉल फॉर एग्जांपल हमने मोज़ेक की टाइल भी ली, एंड दैट मोज़ेक टाइल वाज 800 रुपीस पर स्क्वायर फीट. Wow. बाद में हमें पता चला कि उसमें आर्किटेक्ट का कमीशन था. और अब 800 रुपीस की टाइल ले आए. ऐसे हर बाथरूम की जो हाइलाइटर वॉल थी, हमने कोई 600 की ली, कोई 400 की ली, कोई 800 की ली. Yeah. बजट तो वैसे ही भाग गया था. Yeah. अब हमें ये भी नहीं पता था कि ये टाइल्स लगेंगी कैसे. कॉन्ट्रैक्टर आया, मैम ये टाइल्स तो केमिकल से लगेगी, सीमेंट से तो लगती नहीं है. मैंने कहा यार हमारे अभी भी तो बाथरूम में सीमेंट से ही टाइल लगी है, प्रॉब्लम क्या है? आपने 2x4 की टाइल ली है, ये तो सिर्फ केमिकल से लगती है. चलो केमिकल से लगाओ. कोई बात नहीं. अब केमिकल कितने रुपए का? 700 रुपए की बोरी है, 325 ही लगेगा. कोई बात नहीं भैया, लगाओ. टाइल लगाने के चार्जेस, बड़ी टाइल है तो 50 ज्यादा रुपए, पड़ेंगे. मोज़ेक की टाइल है तो 110 रुपए. अब 800 की टाइल है, 110 रुपए लगाने के हैं, और केमिकल भी है. मैंने कहा यार मैं पत्थर ही लगा लेती. 1000 रुपए पहुंच गए. That's true. मैं पूरे बाथरूम मैं पूरे में इटालियन लगाती तो भी 300 रुपए का पत्थर था. and it would have looked like. इट वुड हैव लुक Yeah. लग्जरी. अल्टीमेटली टाइल तो टाइल ही है. Yeah. कोई बात नहीं भाई, लगा दे. लगाओ. अब मोज़ेक लगाने गए तो मैम दीवार टेढ़ी है, अब कैसे लगाएं मोज़ेक? इसमें तो ऊपर नीचे हो जाएगी, अंडुलेशन हो जाएगी. तो स्क्रैप की टाइल मंगाओ. अब स्क्रैप की टाइल मंगाई, उस पे एरलडाइट से पहले मोज़ेक चिपकाया, उसके बाद उस टाइल को इंस्टॉल किया. Just to get Give rid of that that undulation. अंडुलेशन. Did you change the design of the bathroom or like 3D जैसा था वैसे ही चले आप? 3D तो हमें बन के ही नहीं आया था. मतलब हमने जो रेफरेंस मूड बोर्ड इमेजेस Yeah. या जो देखी थी Yeah. उसके हिसाब से था. Okay. और मतलब ना इतना व्हेन यू कंस्ट्रक्टिंग द हाउस ना, इतने सारे ओपिनियन ना आपका इतना दिमाग खराब कर देते हैं ना एट दैट पॉइंट इन टाइम, कि हमारे आर्किटेक्ट ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया था कि कजारिया, सोमानी तो बहुत ही बकवास है, ये तो लगाते ही नहीं. इनकी टाइल्स में इतनी प्रॉब्लम है, ग्लॉसी नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना. Yeah. So you get brainwashed at times. Yeah. And you don't realize the decision that you're taking is going to cost you this much. Wow. So that is there. फिर सैनिटरी पे आ गए. अब सैनिटरी जी गोल्डन ही लगाते हैं, सब जगह ब्रश गोल्ड लगेगा. Okay. It was going with the theme of your house. हाँ. अब ब्रश गोल्ड लेंगे तो When I saw it, I loved it. Of course, I mean वो वही है ना कि Brilliant. मन तो बहुत करता है कि यार ये अच्छा लग रहा है, ले लो. Brilliant it was. It's brilliant. ले लो. लेकिन अगर ब्रश गोल्ड जाओ तो 30% 40% तो आपकी सैनिटरी का कॉस्ट बढ़ गया. सब कुछ बढ़ गया. अब आप क्या करोगे? चलो जो नॉर्मल I went to Jaguar, I saw the fittings. Then I Jaguar के अंदर ब्रश गोल्ड फिनिश देखा, मैंने कहा ओके ये कितना है, 2.5 गुना ज्यादा था. And availability was like 60 days. अच्छा चलो बाद में देखते हैं. And I let the decision percolate like my brain for a long time. Then I went to Kohler, then I went to all these. तो मैं देख के आया सब अलग अलग ब्रांड्स का. Hey, यार this is brilliant. There's no limit of design and whatnot. अब जो select किया ना वो availability 120 दिन की. हाँ. वो तो आएगा सर.
कहाँ से आएगा भाई, किधर से आएगा? And there is no known transparency of anything with it when it comes to these things. कि इंडिया में बन रहा है, बाहर बन रहा है. People ask me, especially आप जैसे विंडो की बात कर रहे थे, people ask me German windows. I said concept is German. हाँ, construction. Everything is happening in Surat, in Ahmedabad, or India somewhere in south of India. सब कुछ वहाँ से आ रहा है. Hardware सारा इंडिया में बन रहा है. Be it whatever brand. So we tell the people like upfront कि ये है कहानी एल्यूमिनियम windows की आज की डेट में. And they just look at me and like, seriously? Then he takes couple of brands names, सब इंडिया में बन रहा है. और ये वाला मैं कहा ये थाईलैंड से आ रहा है. तो ये थाईलैंड में क्या है? मैं कहता थाईलैंड की मैन्युफैक्चरिंग से बेटर इंडिया कर रहा है. It's cheaper, it's lighter, it's designed on a different way. But the source of these materials, especially these brands, they'll never tell you. When it comes to Kajaria, Somani, people bash it, whatever it is, जो भी brands है. I eventually went for these standard brands only. Somebody known was running a dealership, मैंने उनको बोला और मन में मैंने कर ली तसल्ली कि अगर ये 1 लाख रुपए की टाइल बोली है, अगर इसने मुझे बोला कि तू मुझे 99,500 दे दे तो मैं दे सोचूंगा नहीं कि 1,05,000 थे या क्या था. एंड आई जस्ट मेड माई पीस विद इट. सो मैंने पूरे घर में जितनी भी फ्लोरिंग, बाथरूम्स या एक्सटर्नल टाइल्स लगाए, सब का जा रहा है ये वो ब्रांड्स लगाए. एंड जस्ट सिलेक्टेड वन थिंग एंड आई रिक्वेस्टेड हिम ओनली फॉर वन थिंग कि बस जब तक मेरे घर होगा ना ये मत करिए कि लॉट अब नहीं आ रहा, प्लीज कीप इनफ. और मैंने रियलाइज किया कि the jobs that the contractors did was not actually brilliant because उन्होंने एक तो ये हेरिंगबोन में जब टाइल लगती है ना तो ज्यादा वेस्टेज होती है. Right. I did not know that. उसको शायद करने का तरीका होता होगा better, but I didn't have the time or patience to actually stand there and get it done myself. Right. So I relied on him. अब जो मैंने इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर साहब रखे थे, मुझे लगा ये वो करेंगे. वो तो घर बना रहे, 20-25 घर चल रहे हैं मेरे तो. That's how he sold it to me. कि यार मैं तो रेगुलर काम करता हूँ, 20-25 घर चल रहा है. 20-25 घर जो बना रहा है उसके कितनी टीम्स होंगी, कितने सोर्सेज होंगी उसके पास, कोई लिमिटेशन तो नहीं होगी ना उसके पास. सो आई वेंट ऑन विद हिम एंड सेड ही मस्ट नो व्हाट ही इज डूइंग, व्हिच वाज नॉट द केस. राइट. आई जस्ट रियलाइज्ड दैट देयर इज नो टेक्निकल एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन. राइट. ही नोज हाउ टू सेल. Yes. He does not know how to build. Exactly. It was such a big challenge. And nobody takes the pain. At all. Nobody takes the pain. आप जब सीधी टाइल लगाते हैं तो भी लेवल्स चेक करते हैं कि कॉर्नर से कॉर्नर मैच होते हैं नहीं होते हैं. टाइल्स में भी इश्यूज आते हैं. टाइल की भी मैन्युफैक्चरिंग करना परफेक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू हेरिंगबोन पैटर्न्स, अब वो तो उभर के दिखता है अलग से. बालकनी में मैंने लगाई और वो पानी का स्लोप आप बिलीव नहीं करेंगे, इट शुड गॉन टू द ड्रेन, इट इज गोइंग देयर, बट बीच में एक पार्ट है वो वहां रुक जाता है सारा. अब उसको करेक्शन करने के लिए पता है कितनी टाइल तोड़ रहे हो. और अब मैंने बोला तूने लगाते टाइम तो सही नहीं लगी, करेक्शन करते हुए सही कर देगा. लेट इट बी, छोड़ यार, मैं ये सब देख के कभी कभी तुझे याद तो कर लूंगा. एंड ही स्माइल्ड एट मी. वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स हैपेंड वाज 3D फाइनल थे जैसे आपके फाइनल थे, तो मेरी मम्मा के बेडरूम में वुडन फिनिशेस लगे, तो बेडरूम्स में मैंने वुडन फ्लोरिंग ली है. लगी नहीं अभी, लगनी है, क्योंकि वेटिंग फॉर द लास्ट डे, जिस दिन सोऊंगा घर में उसी दिन लगाऊंगा. अब वो 1-2 दिन में लगने वाली है बाय द वे. सो जो एंट्री डोर है उसकी पॉलिश का कलर कुछ और है, उसके पीछे जो पैनलिंग हुई है उसका कलर कुछ और है, बेड बैक के पीछे जो पैनलिंग हुई है उसका कलर कुछ और है, उसके साइड का कलर कुछ और है. दैट्स 4 वुडन शेड्स. जो वार्डरोब्स हैं उनके जो साइड पैनल्स फाइनली इंस्टॉल हो रहे हैं, वो विजिबल पैनल्स, वो और सामने स्टडी टेबल एंड टीवी पैनल, वो 3 का कलर सेम है. सो दैट्स 5 वुडन शेड्स. नाउ इज लाइक यार वुडन फ्लोरिंग का कलर सिलेक्ट कर ले. बताते कौन सा ये 6th लगा देते हैं. यही बोला उसको मैंने कहा 5 तो है, तू 6 और लगा दे. एंड ही जस्ट couldn't say anything and he laughed and he looked at me and he like, उसके मुझे एक ही बस एक वर्ड निकला जो हंस बोल के क्या कर रहा है. मैंने कहा 6 छोड़, 7 हो जाए तो वो कर ले, मैं 7 बोल दूंगा एटलीस्ट. 6 रंगा बोलने में मजा नहीं आ रहा है. I don't understand why people get into a certain space of business. I think it's just because they think they can make money out of it. But then, if you're not doing a job well, where are you going to grow? How will you grow? I discussed this with an architect friend of mine. मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे हो रहा है मेरे साथ. कहती कितना पुराना कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने बोला 8-9 साल हो गए. कहती 8-9 साल हो गए, तब तक तो ही शुड हैव लर्न्ड. लाइक चलो लेट्स से अज्यूम कि वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आता. This is a new business for him. So he's burning his fingers. I'm like, I'm sorry, you're wrong. He's burning my fingers. And the cost of his learning is being paid by me. Paid by me. Yeah. And I just don't understand, where did I go wrong? She's like, why did you select him?
then he sold it to me Yeah, properly. very true. उसने मुझे अपने 3Ds दिखाए, real image दिखाई, they were very similar. And he's like, and by the way, he's somebody who designs and builds. So I thought this is brilliant. Within one house, Right. मैं बोलूँगा ये change करने ला तो design तो बन के आ जाएगा, which he was good at with wardrobes and kitchens. Back and forth quickly होती रही. हमारी design updation बड़ी जल्दी होती रही. मुझे वहाँ challenge नहीं आया. But there were like so many things which he just did not understand. Right. आपके केस में भी होगा ऐसा बहुत कुछ? हमारा किचन so like Kitchen was- नहीं किचन executed nice and Okay. the person was nice Okay. but वही था पहले तो ये था कि कारपेंटर से बनाओ मॉड्यूलर लो कारपेंटर से बनाओ मॉड्यूलर लो पहले तो वो जीरो डाउन करने में बहुत टाइम लगा क्योंकि वही है कि ये मॉड्यूलर वाले पता नहीं अंदर क्या लगा What did you do? so we went for modular Okay. but the thing was वही मेरे को आदत पड़ चुकी थी कि मैं 4 वेंडर्स के पास जाऊं मैं मेरा डिजाइन फाइनलाइज करूं उसके Yeah. बाद आई विल टेक कोटेशन फ्रॉम 4 पीपल एंड नॉट गो ब्लाइंडली कि एक के साथ फाइनलाइज You went to like different showrooms? I went to different showrooms. I took quotations from different showrooms. And I took the design of a very big brand and got it done from a smaller brand. Okay. जिनके रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे. Okay. पेपर पे सब कुछ डन. जब किचन बन के आया, अंदर का जो हार्डवेयर था, लाइक आई नेवर डिस्कस्ड इट फॉर द फैक्ट मैंने लैमिनेट और पीयू का आई टुक द किचन. Yeah. एंड जो लैमिनेट वाला मेरा शटर था बाहर से तो कलर्ड था अंदर से वाइट था खुलेगा तो अजीब खुलेगा तो अजीब दिखेगा एंड दैट्स अ गिवन स्टैंडर्ड इन द इंडस्ट्री. आई लेटर रियलाइज्ड most modular kitchen people buy it from your whatever factories who are doing the laminated shutters जो what do you call acrylic shutters. उनके shutters they are ready made, they take it from the industry and they use it as it is. पीछे से back white होता है for a standard. अब imagine my wardrobe, I mean my kitchen ward shutter is looking white, अंदर का inside is all brown. I told him, my contractor, कि ये क्या है? And he's like, "Man, this is standard. गलती को तो स्टैंडर्ड कर This देते is standard." I told you never mentioned this to me. Yeah. कि ये पीछे से white होगा. Yeah. Man, this is a standard. मतलब हम ये किसी को नहीं बताते. मैंने कहा आप खुद देखो. कोई डिस्कस भी नहीं करता ये. कोई डिस्कस भी नहीं करता. मैम आपने देखा 500 गूगल रिव्यूज है. And I took a personal review for that kitchen wala from a very good source. Right. आपने खुद ने देखा है हम इतने किचन्स कर रहे हैं and he also has a BNI network and everything and he's a good this thing. उनका ये तो नहीं चलेगा. Yeah. He was kind enough to probably redo the whole work Okay. and he did this and I'm happy with my kitchen right now. अब जब रहेंगे तो पता चलेगा. चलो. So it's come out very beautiful and पता है एग्जैक्ट पे हैंड ओवर में what did he tell me? मैम मैंने आपसे 2 चीज़ें तो बहुत अच्छी सीखी. मुझे प्रीमियम किचन बनाना आ गया. अब तो क्या कर रहा था वो? So according to him, whatever work he was doing was premium and people were taking it as premium. And I actually know he has good reviews. And he's very sweet on the face and he has after sales services also. But even he did not know that his kitchen could look like this. ईशा एंजाइटी तो नहीं थी ये सुनने के बाद उससे कि बाद में क्या होना है, किचन कैसी निकलेगी? मेरे को वही होता है हाँ? कि ये क्या होगा, कि क्या बोला इसने. लेकिन ही टोल्ड मी कि मैंने बोला कि मैंने कहा सर आई एम श्योर आई मीन ठीक है आपने हमने आपको बहुत परेशान किया बट You've dealt with the guy, you think you'll get good service now? या So that's I mean relations are fine because probably he was also ready to take feedback and work on it and deliver good service. So probably that was the reason I am also happy with it. when we talk about such elements to these guys or professionals, But or then vendors, I realized had it been a brand, they would not have done this. No matter how much I would have cried, they would not have done this. And now I realize कि ये ठीक है. This is ब्रांड better. आपका कोई चीज फर्ज करिए, आपने ड्रॉर लगाया, ड्रॉर के अंदर आपने क्वाड्रो या व्हाटएवर जो बिलो माउंटेड वाले आपके वो होते हैं वो लगाया आपने, एंड यू डोंट वांट दैट.
या 20 इंच का आपका वो था तो आपने वो 18 इंच का मंगाना है, तो they will not replace you, they'll bill you extra. Extra. They don't take it back. They don't. It just depends on that trader. If there is a trader in the middle, then that person sort of does that on themselves, which is one of the reasons I never dealt with any brand directly. Right. I went through their traders because I realized as a business owner, as somebody who trades with different companies, it's the trader who will still take the onus. कि चलो कोई बात नहीं भाई साहब, मैं change कर दूंगा आपके लिए. You know, that culture is still alive in India. Yeah. The online market that's there in India, आप कोई भी product खरीद रहे हो online भी, that is why the return policies are still good on Amazon and all these websites, because India में है वो. Customer service is at the peakest level that we want it. We desire a very good customer service, and we are quite intolerant towards not getting it. भारत, हम कभी यूरोप जाते हैं, आपको मिलती है अच्छी सर्विस? नहीं मिलती ना, because those guys are used to their own, right? They've given that to us by being our imperialists, right? Right. कि हमें सर्विस इंडस्ट्री हमारी बड़ी स्ट्रांग है उस मामले में. And anything that I bought, even if it's let's say a chimney and a hob, तो मैंने बोला आफ्टर सेल्स बता पहले, डिजाइन तो देख लिया मैंने. Very true. अब बताओ इसके लिए कितनी जल्दी सर्विस होगी? कहता सर आप ट्राई कर लो. मैं कहा कैसे करूँ? कह रहा आप कस्टमर लॉगिन डाल दो, एक कंप्लेंट लॉगिन कर दो कि मेरा ये हॉब आया हुआ है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है. आई विल कम टू यू विदिन 48 hours. Okay, I'll do it. I didn't tell him, but I did it 2 days later. The guy showed up. He's like, sir हॉब कहाँ? मैं कहा आ रहा है, मैं तुझे टेस्ट करा था, अब तू जा. अच्छा ये बता तेरे एरिया में कितने लड़के घूमते हैं, कितनी बड़ी तुम्हारी सर्विस टीम है? One of the best experiences in another building that I did was with Schindler Lifts. Very good service, brilliant service. They follow up with you after the job is done. Yeah. बहुत अच्छा है सिस्टम, इसीलिए उनकी लिफ्ट्स बिक जाती हैं बस. Right. Service is key here, especially with the challenge of making a decision where now I wanted to get beds done. मैं कहा ये बेड्स और anything with movable hardware. So kitchen का मैंने एक अच्छी चीज करी थी. You took the hardware from the same guy who manufactured, ना? Did you? And you didn't discuss what brand or what make? We did. Okay. So what I did was I pre-decided कि मुझे ये certain brand का hardware चाहिए. I will buy the hardware and give it to you. Very true. And you get the carcasses made in your factory and the shutters made in your factory and get it assembled here. I will provide you the hardware. Same I did with wardrobes. Same I did with kitchens. Right. ये 2 अच्छे decision लिए हैं. Right. मेरी wardrobe में मेरी मर्जी का sliding shutter लग रहा है, मेरी मर्जी का सब कुछ सही लग रहा है. And probably the best functioning features of my house would be these 2. Right. Isha, what's your favorite place in your house that you've designed? Any room or any particular space that you enjoy the most currently? I enjoy all the spaces. Yeah. Like I have designed everything according to me, and मुझे लोग बोलते हैं कि मैम इतने पैसों में ना 2 बार घर बन जाता. बात तो सही है. बट वही था कि कॉस्ट ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है. या बट दिस वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. हमारी किचन का जो आयरनी ये थी कि हमारा किचन का काउंटर 2 बार लगा, वो भी टूट गया. ओके, टूट गया मतलब ऐसा अपने आप? नहीं, हाँ, मतलब इट वाजंट इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली. इट वाजंट इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली. सो अब वो वही है कि होता क्या है एंड क्यों हुआ, सिर्फ 10 mm के दिक्कत से. सो जो पीछे की टाइल्स लगाई हमने, वो शायद से जो काउंटर लेवल था उससे 5 या 10 mm ऊपर थी. अब जो लकड़ी वाले ने काउंटर लगाया बेस प्लाई का, उसने वो थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया. उसके ऊपर से पत्थर वाले ने उसके ऊपर टेढ़ा पत्थर लगा दिया. अब जब हम सिंक काटने गए, वो पत्थर चटक गया पूरा. क्यों हुआ ऐसा? मैम टाइल वाले ने गलत टाइल लगाई थी, तो लकड़ी वाले को दिख नहीं रहा था कि ये 5 mm ऊपर है. तो फिर पत्थर वाले को पूछा कि तूने पत्थर क्यों लगाया, लकड़ी वाला गलत लगा के. मैम लकड़ी वाला लगा के गया था. फिर सिंक वाले को बोला भैया तूने काटा क्यों टेढ़ा. मैम मैं क्या करूं. वो हमने ठीक किया, और तब तक हमें प्रॉब्लम पता नहीं थी. जब सिंक का वो टूटा, हमने सोचा चलो टूट गया होगा, पत्थर गलत लगा होगा या जो भी होगा. जब हम हॉब काटने गए तो हॉब वाली साइड का पत्थर टूटा. तब हमें पता चला कि ये टाइल की वजह से प्रॉब्लम हुई है. एंड वो जो लूप, और फिर उसके बाद मुझे किसी ने बोला मैम आप ही ने तो बोला था फटाफट किचन लगाओ. तो मैंने कहा मैंने ये बोला था फटाफट किचन लगाओ, इसका मतलब ये थोड़ी बोला था कि टेढ़ी टाइल पे लगाओ. वाओ यार, फटाफट किचन लगाना मतलब डज नॉट मीन दैट यू डू इट रॉन्ग. एग्जैक्टली. फटाफट का मतलब है आप ऑलरेडी डिलेड है, टाइम से करिएगा. एग्जैक्टली. प्लीज पुश इट फॉरवर्ड सो दैट आई कैन मूव इनटू माय हाउस. दैट्स क्रेजी. आई हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद सच गाइज यार. इनफैक्ट आई फाउंड कि एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की एक
पहचान ये है जो ना बोलता है राइट कि अभी नहीं होगा जी, ये होने के बाद ये होगा। राइट एंड इनिशियल थोड़ी इरिटेशन जरूर होती है उससे, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही चीज होती है, अगर काम पूरा हो खत्म हो जाए जाए, और स्पेशली टुवर्ड्स द एंड वो पेशेंस खत्म बिल्कुल हो जाती है, थिन हो जाती है Right. एंड यू जस्ट सॉर्ट ऑफ स्नैप एट एवरीथिंग टू द पॉइंट कि जब मैं घुसता हूँ ना अपने घर के अंदर तो सारे चुप हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं कि ये नाराज होएगा बाकी। राइट And same happens with my wife. Nobody listens to her on the side. And it's till the time I reach there and everybody is there now. आज तो हम सीरियस बात करेंगे। 25 decisions होते हैं, but one of the worst things that I have noticed is nobody writes anything down. एग्जैक्टली अब मेरे लिविंग रूम की पैनलिंग वर्क का डिस्कशन हुआ एंड ही इज लाइक हाँ लाके लगा देते हैं। मैं कहा नहीं, पेंसिल लो, दीवार पे वो बनाओ, पहले मेजरमेंट के हिसाब से पैनल्स का डिज़ाइन अभी बनाओ, पूरा दिन लग जाए मुझे, आई डोंट केयर, पहले बनाओ बाद में लगाएंगे। लाइक सर आप पता नहीं क्या। मैं कहा नहीं, रीवर्क नहीं करना, राइट मेरे पूरे घर में रीवर्किंग हुई है। वेरी ट्रू The cost that went up for you was not just the price escalation in 2 years, it was reworking of things. Right? reworking of things. I made a wall thrice. Made a wall, demolished it, made a wall, demolished it at the same spot कि अच्छा अब दरवाजा यहाँ से निकल रहा है, अब दरवाजा यहाँ से निकल रहा है, अब दरवाजा यहाँ से निकल रहा है, in that same wall. मेरे घर की मेन एंट्रेंस थी ना, वो डिसाइड हो गई थी पहले ही, चौखट आ गई थी, सब कुछ आ गया था कि ये मेन डोर बनेगा, ये उसके बाद जाली का दरवाजा बनेगा, एक सेफ्टी डोर बाहर अलग से है जो एंट्रेंस से हटके है, वो लोहे का दरवाजा बनेगा। चौखट आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक पुराना दरवाजा लगा हुआ था तो किसी ने ध्यान में नहीं दिया, ना मैंने चेक कराया, ना कॉन्ट्रैक्टर ने चेक करा, और जबकि उस एरिया में कॉन्ट्रैक्टर काम करता है सारा, ही नोज दैट स्ट्रक्चर इन एंड आउट। जब वो दरवाजा निकालने लगे तो पता चला इतना चौड़ी चौखट तो लगी नहीं सकती। कह रहे जी यहाँ तो कॉलम है, सेम स्ट्रक्चरल इश्यूज। बस तूने कितने घर कर दिए यार। Right. If I have done so many houses in the same area, I already know what the structure is like. Right. Because they're repetitive housing. Right. सब कुछ सिमिलर है डिजाइन में। अगर आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो स्ट्रक्चर तो ऑल्टर हुआ ही नहीं है ना डीडीए के टाइम से अब तक। Nothing has changed. How do you not know this? Right. और कॉलम और बीम चेक पहले कर लेता है, Right. थोड़ा बहुत स्क्रैच करके कुछ। अच्छा मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे साथ इसीलिए हुआ है just because of this reason, because I did not have the architect, because I did it on my own. But वही है कि nobody knows anything, everybody gets in without their brains, and कि चलो बस अब एक नया they've got a I think one of the biggest things wrong with the architect that you hired was also that they were doing probably multiple jobs. कई सारे projects थे शायद उनके पास। yeah, so that is the reason I told you, you should never go with a renowned, very renowned firm or something, because it's the fact that they are doing they have their hands full. Yeah, capacity नहीं है। Capacity नहीं है, and this industry is growing at a pace where the customer knows nothing. Yeah. And everybody has their hands full and nobody gives a damn about the fact that कि हम बैकग्राउंड में क्या काम करके चल रहे हैं. Everything should look good. पैसा उनका नहीं लग रहा, टाइम उनका नहीं लग रहा, घर उनका नहीं बन रहा, इवेंचुअली उन्होंने वहाँ रहना नहीं है. Exactly. उनकी जो भी उनका स्कोप ऑफ वर्क है वो एग्जिट खत्म होते ही वो एग्जिट कर जाएंगे. It's the homeowner or anybody who's using that space will be left there. तो मुझे नहीं पता कितने लोग सीरियसली लेते हैं इस काम को. And my new architect told me, and that day it hit me hard when he told me, मैंने बोला, I asked him that, this, like I told him, Shivam, that, ये यहाँ से wire दिखेगा, why are we buying this? We should not be buying this. He told me, man, everything on Instagram that you see is edited. Every house has a hanging wire from a lamp. If you think an architect has done 100% job, it's not that. Wow. Everything is edited. आपको जो पिक्चर परफेक्ट फोटोज दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है. And that day it hit me hard that everything that you see is not true, and probably we should do our homework from scratch. Do you think internet helped you? Yeah, a lot. So the tile thing that I told you कि waste पे tile लग के मुझे लगा है, I took it from Instagram only. The contractor didn't offer that solution? The contractor, the laborer told me कि ma'am, this is how we will put it. And I was doubtful. मैंने कहा यार ये पागल है, अपना काम easy करने के लिए बोल रहा है मुझे. मतलब मेरा double cost लगेगा, double time लगेगा. And he's doing it probably for his this thing. Yeah. Contractor ने बोला मैम नहीं ऐसे ही लगा लो, कोई बात नहीं. And I was confused as to what to do and what to do.
And then a renowned architect was putting it the same way. तब मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब आप चुप रहिए, भैया आप काम करो. Because I had no option. I could not send those tiles back, but I had to make the best out of the whole situation. And that Instagram page helped me with that thing. I have learned कि जो इंस्टॉल कर रहे हैं ना ड्रिल लेके हाथ में, उसको ज्यादा पता है उसके कॉन्ट्रैक्टर्स. Exactly. Genuinely. जिसको पता है ये स्क्रू यहाँ जाएगा ही नहीं, हाँ. तो नहीं जाएगा. But you know, the contractors make their people shut their mouths. Like for example, अभी हुआ, so we were installing our doors and frames. So छोटे होते थे when I was probably 10 or 12. I had heard from my father saying कि लकड़ी में एक बार अगर छेद हो गया, उस पे बार बार स्क्रू निकालोगे और लगाओगे तो वो लकड़ी अपनी जगह छोड़ देगी. आई हैड दिस एट द बैक ऑफ माई माइंड कि आप बार बार उसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करोगे तो उसका काम खत्म है लकड़ी का. एंड लकड़ी में स्क्रू हमेशा सीधा जाना चाहिए, टेढ़ा नहीं जाना चाहिए. दिस माई फादर टोल्ड मी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सो माई डोर कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने डोर और चौखट के जो साइज थे वो कुछ की वजह से गलत थे. ओके. एंड ही नेवर टोल्ड मी दैट यू नो आई हैव डन अ शॉर्टी जॉब. अब वो जो उसका, और हमें जज करना भी नहीं आता. हमें जज करना भी नहीं आता कि कितना का गैप है और क्या है और ये कैसे इंस्टॉल होगा. So he started putting those hinges and जो उनका जो वर्कर था, जो कारपेंटर था, उसने ना टेढ़े स्क्रूज लगाने शुरू किए. 3 स्क्रूज उसने टेढ़े लगाए क्योंकि बिकॉज द चौखट वाज स्मॉलर एंड द डोर वाज वाइडर. अब अगर पॉलिश सारी हो चुकी थी चौखट की, अगर वो चौखट छिलता और फिर वो डोर को सेट करता तो उसका टाइम डबल होने वाला था ना, कॉस्ट भी डबल होने वाली थी. तो उसने क्योंकि स्पेस कम था उसने टेढ़े स्क्रू लगाए. और ये मेरे दिमाग में खटक गई चीज. अगर वो स्क्रू टेढ़े नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि ये गलत हो रही है चीज. मैं उसको पूछा भैया आप टेढ़े स्क्रू क्यों लगा रहे हो? मैम ये ना आज मेरे पास ड्रिल बिट ऐसी नहीं है, मैं कल दूसरी ड्रिल बिट लेके आऊंगा और इसको सीधा कर दूंगा. तो मैंने कहा आप आज लगाई क्यों रहे हो, आप कल ही लगा देना. मैं नहीं मैम कुछ नहीं होगा. ठीक है. एंड आई हैड 50 डिसीजंस टू टेक दैट डे. मैंने कहा चल कर ले. ठीक. फिर मैं जब रात को घर गई मैंने कहा यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता. उसने उस दिन एक दरवाजा लगाया था. नेक्स्ट डे आई कॉल्ड अदर कारपेंटर जो मेरे घर पे काम कर. मैंने कहा भैया आओ एक बार और बताना इसमें दिक्कत क्या है. तो ना वो हंसा. मैंने कहा बता दो मेरे को क्या हुआ. कह रहा मैम आपका डोर मोटा है, चौखट छोटी है. कोई बात नहीं आ जाने दो उसको. तो मैंने कहा भैया आज आप ड्रिल बिट ले आए? हाँ जी मैम. मैंने कहा इस दरवाजे को उतारो और अपने फैक्ट्री वाले को बुलाओ. इज लाइक मैम ये फैक्ट्री वाला इज सेइंग मैम दिस विल बी डन, आप टेंशन मत लो सारे दरवाजे लग जाएंगे. मैंने कहा भैया दरवाजे लगाने ही नहीं है, छोड़ दो. 3-4 दिन मेरी और पंकज की उसके साथ लड़ाई. भैया ये लगाने ही मैम, ये सब फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड स्टफ है. हाँ ये हो जाएगा. मैंने कहा ये करना ही नहीं है, टेढ़ा स्क्रू लगेगा ही नहीं. मैम कुछ नहीं होता. मैंने कहा भैया कुछ तो हमें भी पेरेंट्स ने सिखा के भेजा है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. इवेंचुअली जो इंस्टॉलेशन का कॉन्ट्रैक्टर था उसको जिस दिन मैंने किक आउट किया, ही सेड मैम सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट्री वाला का गलती and in that process I did a shoddy job. I am very very sorry. बताओ. And that person is working with the finest of furniture manufacturers from Delhi. यही होता है. मतलब highest end. And I was very rest assured कि अगर ये उस ब्रांड के साथ काम करे तो मेरे घर में तो he'll do a very good job. And till date he's now sorry. You see ना कि चौखट के साथ एक आर्किट्रेव लगती है. Exactly. बना के सुंदर करने की. There was a purpose कि उससे थोड़ा और richness आ जाती है. The Grandness. Frame, it looks very grand, right? But then later I learned कि उसके dual purpose होता है. कि जो बाकी कमी होती है वो hide करने के लिए होती है. The actual purpose. Right. The real architrave that's put, especially in a system like a UPVC or aluminum system, runs below the frame. Right. And goes out to your outer side. उसके ऊपर विंडो या वो लगती है साथ में अटैच होती है. Right. When I saw the European way of doing it and the way it's done in India, those two are different. तो वो यहाँ वो छुपाने के एस्पेक्ट से लगती है
इवेंचुअली इट लुक्स गुड, Right. बट बाहर देश में कभी भी होता है तो वो इसलिए भी होता है कि वो सेल्स सीधी कर देते हैं, Right. क्योंकि हर जगह वो पत्थर नहीं यूज करते बाहर। Very true. अब हम लोग पत्थर की जामिन कर ही इसलिए रहे हैं यहाँ ताकि हमारी सेल्स प्रॉपर हो सके, Right. हमारी चॉकलेट प्रॉपर लग And सके। that European standard, people who are doing it in India are charging above. They I are, went to of those course, you can't afford it. people also, Yeah. and I realized that, of course, I mean, it looks fabulous, but they are charging a bomb because You can- yeah, industry नहीं है उस काम की. Yeah. And you know, when we went to China, the people told us that when you plan a house, you come explore everything, and then start building your house. I think we were lucky in one thing, and I did something very sly also. तो मेरे इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर के कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो मुझे अच्छे लगे, और मैंने क्या किया कि अकरम भैया आप आ जाओ, विनय भैया आप आ जाओ, तो ऐसे ऐसे करके मैं कहा अच्छा तू ये बना देगा, तू ये कर देगा, तू ये कर देगा। तो मैंने वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स पकड़ लिए, वो डूइंग अ गुड जॉब, एंड देन आई रियलाइज्ड इवन दे विल नॉट बैड माउथ द मेन कॉन्ट्रैक्टर, बट Right. they knew that the main contractor had his Or for limitations, making of food, yeah. right? तो उसको थोड़ा सा था कि यार ये गड़बड़ कर रहा है, to the point where we discussed a few things which we had already achieved like 6 months back, saying okay इसमें हाँ जी ये कमी है, जो आप कह रहे हो वो सही है, वो आपसे लड़ रहा है बस, क्योंकि वो बेचारा करे क्या, गलती हो गई तो हो गई। जैसे रेलिंग्स के नीचे, बालकनी में रेलिंग्स के नीचे हमने ग्रेनाइट लगाया था, जेड ब्लैक कलर का ग्रेनाइट में लेके आया, जो वेरी नाइस डार्क ब्लैक, व्हाटएवर, इट वाज ब्रिलियंट, Right. द सेम फिनिश आई वांटेड, प्री पॉलिश्ड ग्रेनाइट। अब प्री पॉलिश्ड ग्रेनाइट में चैलेंज क्या होता है कि आपने उसके ऊपर चीजें रख दी या स्क्रैच मार दिया, वो स्क्रैच Guy. वो दिखेंगे। Right. नाउ इट हैज टू बी रीबफ्ड, रीपॉलिश्ड, दैट्स अनदर चैलेंज, बट हो जाता है अपेरेंटली। लेकिन अब रेलिंग्स लगने का टाइम आ रहा है, तो लकड़ी का भी काम चल रहा था, प्लस बाहर का एक्सटीरियर पेंट का भी काम चल रहा था, हमने यार रेलिंग रोक देते हैं क्योंकि फिनिश्ड रेलिंग है, सो विल डू इट लेटर। Right. बट माय कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर लाइक लगा देना, क्या हो गया, कर दो, खत्म करो। मैं कहा अच्छा ठीक है मैं लगा देता हूँ, स्क्रैचेस आएंगे तेरे से, पाउडर कोटेड है, एमएस है, कुछ भी खराब होगा जिम्मेदारी तेरे को लेनी होगी। कह रहे छोड़ फिर बाद में देखेंगे। सो द डिसीजन एज लॉन्ग एज इट्स Is you Yeah. on you? Yeah. इट्स फाइन। ओनस लेने का बड़ा इशू है क्योंकि जिम्मेदारी नहीं ले सकता कोई, Accountability. अकाउंटेबिलिटी पता ही नहीं है यार उनको। चैलेंज यही है मुझे। इनफैक्ट क्या बोलूँ, दिस इज आर्किटेक्ट फ्रेंड माइन जिनको मैंने बोल दिया कि यार अकाउंटेबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, आई एम सॉरी, आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट। मैं अपनी रेपुटेशन पे ब्लॉच नहीं चाहता कुछ भी करके। आई थिंक मे बी इट्स कमिंग टू यू बिकॉज यू आर द सेकंड थर्ड जनरेशन सॉर्ट ऑफ अ गाय। यार उसकी गलती नहीं है ना, उसके लिए हो सकता है बिजनेस पहली बार हो। मैं कहा तब तो और ज्यादा नहीं होना चाहिए। Right. कहती उसका हो सकता है विजन ही ना हो ना टू लीव दिस टू हिज किड्स, दिस इज जस्ट अ मीन्स टू एन एंड टू जस्ट मेक मनी। Right. Right. I'm like, then maybe this is a question I need to ask that person at the very beginning. Exactly. How do I assess this? Right. कि मैं अपने वेंडर को या कॉन्ट्रैक्टर को पूछूं कि भाई तू ये बता तू कितने साल से काम कर रहा है, Right. सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, या तेरा विजन क्या है उसको लेके, विजन तो कोई सच बोलेगा ही नहीं। Right. Right. हाउ डू आई जज दिस कि यार अकाउंटेबल है वो बंदा या नहीं। Right. तो कहती यार देखो बातों में तो सब अच्छे होते हैं। मैं कहा वो अच्छा था ना, विज्ञान Exactly. That's एक मिनट सोल्ड, right. आई वेंट ऑन। I want to talk to you about how you managed अब ठीक है, I know I'll be talking about money to you now, ठीक है, it's the big elephant. Right. I am bad with money. Right. I end up trusting people too much, and then I keep on paying them running payments. Right. और बाद में पता चलता है मैं ठगा गया हूँ बाद में। True. And people of the same industry will come and assess it and saying कि यार तूने क्या करा, तूने 2x में काम करा लिया, 1.3x में काम करा लिया, 1.5x में काम करा लिया ना। I get a little miffed later on कि यार लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। Right. Any challenges there with you guys? 100% same. So I was, like I told you, my contractor was running payments with me, and I ended up paying him probably 50K extra, whatever his billing amount was, because I was like, वो रोते हुए मेरे पास आता था कि मेरे पास तो कुछ बच नहीं रहा, पैसे चाहिए, बच नहीं हो रहा, बच ही नहीं रहा, मैं तो मर गया, मैं तो ये हो गया। एंड यू नो whatever, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आई डिड नॉट नो दैट you should be holding payments for the final stage, even for your civil contractor. I was like, civil contractor का काम खत्म हो यार, उसको पैसे दो, काम खत्म, हमारी भी liability खत्म हो और उसका भी अपना काम खत्म हो, like we're done with it. छोटा मोटा सीमेंट का काम होगा करवा लेंगे यार, कोई बात नहीं।
so that is how I started off while doing the house, and I realized somebody told me कि यार मैंने तो पेंट तक अपने कॉन्ट्रैक्टर के पैसे रोक रखे थे प्लस्तर के, and I made the contract as such कि huge chunk of money would only go at the time of completing the plastering. क्योंकि अगर आप पहले पैसे दे देते हो तो वो प्लास्टरिंग ढंग से नहीं करके जाते हैं, which is exactly what happened with me. उसने दीवार बनाई, मैं उसको पैसे दे देती थी कि ये बना, और वो हमेशा रोते हुए आते थे कि मैं तो मर गया, मेरे पास तो पैसे नहीं. एंड आउट ऑफ काइंडनेस और आउट ऑफ दैट ह्यूमिलिटी, बिकॉज यू डोंट नो हाउ डर्टी दिस प्रोसेस इज, यू एंडेड अप पेइंग. एंड आई रियलाइज्ड इट लेटर, जब उसका पूरा बिल बना कि यार मैंने तो इसको ऑलरेडी पूरी पेमेंट कर दी है. एग्जैक्टली. एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज नॉट वर्किंग फॉर मी प्रॉपर्ली, बिकॉज उसको तो पेमेंट्स मिलते जा रहे हैं. रिवॉर्ड की अब वो ही नहीं है ना उसको. रिवॉर्ड की कोई वो ही नहीं है उसको. मतलब यही नहीं कि अगर आज ही मुझे छोड़ देंगे, मेरे तो पैसे पूरे आए हुए हैं, 10-20 हज़ार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड दैट इज हाउ आई रियलाइज्ड कि ये बहुत लेट हो चुके था. माय सिविल कॉन्ट्रैक्टर टॉट मी दैट. तो मैं बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स को उसी नजर से देखने लग गया फिर. सेम वाज विद मी. और अब हमारा, और पता है नोबडी टेल्स यू कि ये मेजरमेंट कैसे होगा. एंड पता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, हम भी ये निटिग्रिटीज नहीं पूछते कि किसी भी चीज की जो मेजरमेंट है, हाउ विल यू कैलकुलेट इट, हिसाब कैसे होगा. हिसाब कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल ठीक है स्क्वायर फुटेज है, लेकिन बाद में बोलते हैं मैम ये लाइन जो है ना ये रनिंग फुट में नपेगी. 3 इंच भी जो है वो आपका 1 फीट में जाएगा. अब उससे तो कैलकुलेशन जो पूरी की पूरी थी वो तो चेंज हो जाती है, हिल जाती है पूरी की पूरी. एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल हम पीयू करा रहे थे, तो पीयू का स्टैंडर्ड रेट था 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट. चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट. अब हमारा जो स्टेयर केस था उस पर हमने इन्वेस्ट कराया था, हमने उस पर भी पीयू करा दिया कि पीयू कराना. आर्किटेक्ट ने बोला पीयू कराना, चलो जी पीयू करा लेते हैं. अब जब मेजरमेंट की बात आई, अब हमें लगा कि अब स्टेयरकेस है, रेलिंग्स लगी हुई हैं, उस पर पीयू करेगा तो एक ही तरफ से तो नापेगा ना उसको, वो दोनों तरफ से थोड़ी नापेगा उसको. एक रॉड है उसको पेंट कर रहा है, 6 इंच की गैप पे वो रॉड लगी हुई है, तो वो अगर रनिंग फीट भी नाप, उसको पूछा हमने कि कैसे नापेगा, रनिंग फीट नापेगा. मैम चलो ठीक है रनिंग फीट भी नापेगा, हम उसके लिए भी ओके थे. अब जब उसने बिल बनाया, उसने इस तरफ से भी रनिंग, उसको डबल कर रखा है कि मैंने इस तरफ से खड़े होकर पेंट मारा और मैंने उस तरफ से खड़े होकर पेंट मारा. तो अगर 20 स्क्वायर फीट है तो उसका 40 हो गया. मैंने कहा तू पागल है. तो रेलिंग्स के बीच का गैप भी नप गया, वो पूरे एरिया पूरा. उसका कहना ये है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट होता है. तो मैंने कहा यार जो 6 इंच का गैप है, अगर वो पूरा सॉलिड होता तो तुझे वहां पे भी तो ये बात शुरुआत में बताई थी उसने कि ये नहीं बताई. सो दिस इज हाउ द लूप होल इज. मैंने कहा भाई मैं तो वो बोलता है मैम ये तो 4 तरफ से नपना चाहिए, इधर भी तो पेंट मारा. मैंने कहा उल्लू बनाने की भी कोई लिमिट होती है. मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया था पता है, सिविल वाले ने, बीम के ये पैसे, ये टोटल बीम हो गई जी आपकी, स्लैब के ये पैसे. तो मैंने कहा स्लैब तो बीम के साथ भी है ना, चल बीम लटक बीम है व्हाटएवर, चलो डिफरेंस देख लेते हैं. कहता नहीं ऐसे होगा. चलो ठीक है. अब एरियाज को दुगना कर लिया. सो ये क्या हुआ. अब प्लास्टर जो गलत किया था उसने, उसको रीप्लास्टर किया उसने, वो दोनों बार जोड़ दिया उसने. दोनों बार जोड़ा. कहती ये तो माल मटेरियल तो लगा ही है ना जी. अब मैं आई एम नॉट श्रूड लाइक अ बिल्डर प्रोबेबली वुड बी, एंड बिल्डर वुड टेल देम कि बॉस देखो तुमने खराब किया था ना, तुम्हारी कॉस्ट है या व्हाटएवर ही विल से. मैंने कहा चल मटेरियल का ले ले मुझसे. कहता नहीं सर लेबर भी तो लगती है. मैं तो चौक से लाया था जी, मैं तो ये किया था जी, लेबर मेरी अपनी नहीं है जी, वो तो तनख्वाह होती है, मैं तो मर जाऊंगा जी. और मर जाऊंगा जी जैसे ही सुनते हो आपको किसी को मारना थोड़ी है. एग्जैक्टली. दैट इज नॉट मी. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस विद यू. वेरी ट्रू. कि भाई तू मर जाए तो ये तो कोई सोचा ही नहीं मैंने. वेरी ट्रू. वहीं फंसता आदमी. रनिंग पेमेंट्स में फिर आप भी एक्स्ट्रा देके बैठ गए थे पहले ही. राइट. फिर बाद में अकाउंटेबिलिटी नहीं बनी. आई थिंक व्हेन आई आस्क कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या रूल होना चाहिए, वो ये होता है ज़्यादातर कि आप 10% होल्ड करके रखते हो आफ्टर द जॉब इज डन. Exactly. For 1 year or the first rainy season, whichever comes first. Oh, अच्छा. Okay. हम रूल ये है, स्ट्रक्चर का तो यही है कि यू होल्ड 10% for either a period of 1 year or the first rainy season, whichever comes first. Okay. तो ये सीखा था मैंने. न्यू बिल्ड का रूल है ये. रेनोवेशन में कोई रूल्स है या नहीं पता नहीं. मुझे लगता है रेनोवेशन वाले कमाते ज्यादा हैं. आई डोंट थिंक सो. जिनको पता है, जिनको रूल्स पता है, probably they put it in their contracts first. Otherwise your contractor will never give you an option. Do you have a written thing with your contractor? No.
नहीं इवन नो कॉन्ट्रैक्टर, वो सीधा सीधा ये था, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमें तो पता नहीं है। वो तो And सबसे they अच्छा are तरीका very, है। because they are in the industry, they know कि उनके payments cut down होंगे, and they know कि people will withhold money, so they work accordingly. So like I told you, तो उसने हमारी सिर्फ पेंट वाले ने 2 लाख रुपए का बिल बनाया सिर्फ स्टेयरकेस को पेंट करने का, दिस इज विद मटेरियल, जस्ट लेबर विद मटेरियल, बट मतलब सिर्फ पीओ स्टेयरकेस को वो जो पीओ करेंगे, मतलब दैट वाज ह्यूज, आई मीन 350 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। एंड कैन यू बीट दैट? यस्टरडे हमने उस 2 लाख का 75,000 जब काटा, he did not even budge because he knew कि he has charged exorbitantly, and he's like ठीक है भैया आपने जो कर दिया कोई बात। एंड पंकज वाज शॉक्ड। मैंने बोला, एंड आई वाज टेलिंग हिम कि ये ऐसे नहीं हो सकता, आई मीन दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो पंकज को दुख हो रहा था कि ही टोल्ड हिम कि मैं 1.25 से दूंगा, मैं 2 लाख नहीं दूंगा। एंड उसने 2 मिनट के बाद बोला कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सो had it been a pain point for him, he would have fought it. He would have fought it. And because it was not a pain point, he did not. बिल इतना बना दो कि जो दे देंगे वो सही है, जो दे देंगे वो पूरा तो हो ही जाएगा, कवर अप तो हो ही जाएगा। मुझे आई थिंक बिजली वाला अच्छा मिला। आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। ही इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी टू द पॉइंट, और वो जब आता है अपना काम करके निकल जाता है। आई थिंक दैट्स अ साइन ऑफ अ पर्सन यू डोंट सी ऑन द साइड। उल्टा है कि एक इंसान आपको साइड पे दिख रहा है, दिखे ही जा रहा है 3 महीने से, तो मुझे लग रहा है वो अपना काम नहीं कर रहा। राइट। हम सोच रहे हैं कि ये तो आ तो रहा है बेचारा, रोज आ रहा है, ये वो बेचारा आ रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, एफिशिएंसी नहीं है ही नहीं। तो बिजली वाला मेरे को दिखता है ये तो अच्छा 2 दिन के लिए आया था, फिर 10 दिन बाद दोबारा 2 दिन के लिए आया, बट आई सी द जॉब हैपनिंग, आई सी थिंग्स बीइंग प्लेस्ड, वायरिंग डन, टेस्टेड। बाहर मेरा जो मेन एमसीबी बॉक्स है बन गया, मेन बॉक्स ये वो सब हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सब अच्छे से हो रहा है। फिर मैंने उसको बोला यार इन तारों को सफाई से लगाना, क्लैम्प करके अच्छे से, मैंने अगले दिन उसने वो कर दिया। राइट। देन आई सॉ कि अच्छा एक काम कर, तू लाइट्स लगा दे, देखेंगे। कहता भैया अभी लाइट्स मत लगाओ, आपके यहाँ डस्ट उड़ रही है, जो प्लेट्स हैं वो सारी स्क्रैच कर जाएंगी बाद में क्लीनिंग के टाइम पे, लेट्स नॉट डू दैट। बोला क्या कर सकते हैं? कहता है मैं ये कर सकता हूँ, अंदर का फिटमेंट लगा देता हूँ, बाहर की रिफ्लेक्टिव प्लेट नहीं लगाऊंगा। राइट। तो रिफ्लेक्टिव प्लेट हम बाद में लगा रहे हैं, एंड लाइटें तो जल गई घर में, अदरवाइज वही बल्ब लटके हुए थे, वही काम चल रहा था। सोचना अच्छा चल एक काम कर, अब 3Ds और डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ। देखो डिजाइन एंड बिल्ड दिया हुआ है मैंने, सो वो डिजाइन एंड बिल्डर साहब साथ खड़े हैं, मैं भी साथ खड़ा हूँ। सो आई एम लुकिंग एट माई मंदिर वाला एरिया, ठीक है। अब मंदिर वाले एरिया में देखते हुए मैंने उसको बोला ये लाइट्स कैसे कट किए हैं तूने? वो लाइट वाला फट से आया, इलेक्ट्रिशियन मेरा कहता से भी गलत है, सो थैंक यू आपने देख लिया। ही थैंक्ड मी। अरे मुझको अटपटा लग रहा है यार ये, क्योंकि किचन, फिर देन डाइनिंग स्पेस, एंड देन देयर इज द मंदिर स्पेस, तो ये लाइट्स ऐसे लाइन में मुझे दिखी, तो वो ऑफ थी। मैं बोला तूने सेंटर क्या लिया है, किस तरीके से सिमेट्री बनाई है? देन ही सेड सर प्लीज एक बार मेरी सुन लोगे? मैंने कहा 1 मिनट रुक भाई, बताना कैसे होगा। आई लव प्लेइंग द डेविल। सो आई आस्क्ड भाई तू बता, 1 मिनट यार आप रहने दो भाई, तू बता, बिकॉज़ ही इज द डिजाइनर, इसकी ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए बात में। तो कह रहा ठीक तो है। मैं चलो ठीक है, ठीक लग रही है, मेरे को तो ऑफ लग रही है। इज़हार भाई बताइए आप। मेरे सर ये तीनों लाइन में जाएंगी, और फिर ये वाली लाइन इधर जाएगी, तो उधर आप कहेंगे तो मंदिर के पास में एक और दे दूंगा। मैंने बोला तो ये 2 ही रहने थे ना, मंदिर के अंदर तो लाइट ऑलरेडी है। सर बिल्कुल ठीक है। मैं बोला भाई तू बोल, कहता तुम दोनों ठीक कर। Like, are you saying that because we are not listening to you? Because I gave you that first chance. Right. And I tested him everywhere. Right. When it came to the technicalities, he failed. Right. He's just good at selling. Right. Then I realized he's not somebody who studied architecture. Right. He's not somebody who's even studied interior design. Right. मुझको लग रहा है ये प्रॉफिटेबल बिजनेसेस भी कर रहा हूँ। Right. मैंने इससे पेमेंट टर्म्स बनाई। अब आपको बताता हूँ, रनिंग पेमेंट चल रही थी। अब मैंने रियलाइज किया कि मेरे घर की चाल स्लो हो गई है। सो एम आई नॉट पेइंग हिम ऑन टाइम? माय ब्रदर टोल्ड मी कि तू शायद देख यार, तू शायद पैसे नहीं दे रहा उसको टाइम पे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतने पैसे ले चुका है। सो दिस वाज अ कोड दैट आई गॉट फॉर लेट्स से 25 लाख रुपीस। सो आई हैव गिवन हिम 14। वेयर एम आई रॉन्ग? आधे से ज्यादा काम भी नहीं हुआ अभी, एंड ही इज क्राइंग। देन आई रियलाइज किसकी चल रही है, बीच साइड। राइट। ये फंसा हुआ है 4 जगह, दूसरी जगह, और इसके पास पैसे नहीं है शायद। So that's why he's not able to deliver elements for my house. Then I sat him down. I was like,
एक काम करते हैं, हिसाब कर लेते हैं. Took me 2 months to make him sit down with me. I had referred him to someone else. He gave me a feedback कि बॉस किससे काम करा रहा है, तूने किसको दे दिया मुझे? अरे तो डिलीवरी नहीं करता. मैं कहा अच्छा. मैं कहा फिर आप कैसे करेगा? मैंने पेमेंट्स रुकी जब काम करा. चलो ठीक है देखते हैं. So I sat him down. I said let's not be bitter about anything. Are you able to do this or not? जितना तेरे को दे रखा है. What's the next step? I suggest the next step would be that you deliver and we move forward with it. And it's like भाई तू मेरे को दबा रहा है पैसे से, ये वो है. मैं कहा यार पैसे से नहीं दबा रहा तुझे. And I got angry. मैंने चिल्लाया नहीं. I told him कि बॉस सॉरी, दबता वो नहीं है जो पैसे से दबाया है. पैसे से दबाना कुछ भी नहीं है. Exactly. मेरा घर पूरा नहीं होगा. तूने कारकेसेस लाके लगा दी, तू शटर्स नहीं लगाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? Right. तूने वुडन फ्लोरिंग सजेस्ट कर दी, लगी नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा? पत्थर जब खुलेगा उसकी कमियां दिखेंगी. मेरे घर की सारी स्कर्टिंग्स आड़ी टेढ़ी हैं. कहीं से थोड़ी दिख रही है, कहीं से ज़्यादा दिख रही है, कहीं से दिख ही नहीं रही है, कहीं से कुछ हो रहा है. व्हेन वी डिसाइडेड कि सारी स्कर्टिंग्स वॉल के फेस में है, डे 1 पे जो डिसाइडेड था, अब तू सारी करेक्शंस करेगा. Right. तूने वो स्कर्टिंग्स तोड़ दी हैं. तू लगाएगा या नहीं मुझे नहीं पता. Very true. मैं दबाऊंगा. It's not you. Right. Please समझ. Let's put things to perspective. Number 1. Number 2, when you talk about money, I think when it comes to a homeowner, most people do this, that they keep the money saying कि आज मेरे पास 10 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए मैंने घर के लिए निकाल के रखे हुए हैं. Right. And then I'm going to do the job. Most people do that. Right. So I told him कि अगर तेरा मेरा 10 लाख रुपए का हिसाब बचा है तो मैंने वो 10 लाख रुपए रखे हैं. Right. ताकि I am able to do this. So it's Exactly. not going to hold. Yeah. But please deliver. Right. You keep asking me, and he doesn't ask me for money. Right. You know, the way he asks me for money is very casual also. Right. He thinks I'm somebody who's extremely rich and I can pay him on time. Very true. So I told him, boss, किसी का भी 100 रुपए का नोट होता है, 100 रुपए में ही चलता है. Very true. मेरा 100 रुपए का नोट 1000 में नहीं चल रहा है. Please. So I'm sorry, the value of the money is going to be shown the moment you deliver. Right. ले पैसे. तू next क्या deliver कर रहा है? Right. I have everything written down now because I sat him down. तो मैंने 1-1 रुपए का हिसाब करके फाइनल वैल्यू लिख दी हमने. मैंने बोला ये फाइनल डिस्काउंट, ये फाइनल वैल्यूज. ही वाज अग्रीड ऑन इट. फाइन. अब उस पेपर पे हम हिसाब करते रहते हैं. वो जितनी बार बिल रेज करता है चेक पकड़ा देते हैं, काम खत्म करते हैं, चलते जाते हैं. बट इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर एनीबडी हु इज नॉट फ्रॉम दिस स्पेस टू एक्चुअली डू इट डिलिजेंटली. Exactly. And you learn on the job. So same thing happened with us, with our carcasses and our door. So like our team, door team and the wardrobe team was one. Okay. And they had to deliver, I mean, they had to hand over on 20th August. Kitchen, wardrobe and doors? No, kitchen was somebody else. Okay. Wardrobe and doors was somebody Okay. else. He had to hand over the site to me on 20th August. We are 26th October. We have still not been handed over. Why do you think that is? Do you think that's Diwali crunch? Or do you No, think pure 20th incompetence? August was not Diwali. I mean, he started off. No, अभी तो after- दिवाली क्रंच है ना जैसे. अभी दिवाली क्रंच है, but because he started off late, जिस दिन हमारा भयंकर लड़ाई हुई है, उस दिन तो उसने काम शुरू किया. Why are these people like this? I don't understand. And every time, and the irony is, for example, same what you said कि contract बन गया, इस रूम का कारकस आएगा इतनी पेमेंट, इस रूम का शटर आएगा इतनी पेमेंट. आपकी थी ये क्लियर? ये क्लियर थी, ठीक है. ऑन दैट नोट ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल, कारकस आएगा 50% पेमेंट है, ठीक है. अब कारकस ही अगर गलत आ गया और अब उस नए कारकस को भेजने के लिए ही इज टेकिंग 25 days, तो मेरा काम तो लटक गया ना. कैसे होगा? उसका भी मुंह लटक गया. उसका भी नहीं, उसका मुंह नहीं लटकेगा. कॉस्ट तो लगेगी ना उसकी एक्स्ट्रा. नहीं, वो तो कुछ भी करके उसको एडजस्ट करके लगा देगा. अच्छा, दे रीओपन इट एंड रीओपन. बट मेरे लिए तो प्रॉब्लम है. मेरा साइट लटक गई है. अब आई कांट फिनिश द पेंट, आई कांट फिनिश द पॉलिश ऑफ द स्टोन. उसके अंदर कोई पेनल्टी क्लॉज था? पेनल्टी क्लॉज तो ऑफेंड होता जा रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल, अभी लास्ट माय गृह प्रवेश वाज इनिशियली 4th October. वो हमने डेडलाइन स्ट्रेच करके 23rd October पे लेके आए, क्योंकि हमारा ना पेंट फाइनल हुआ था, ना हमारा मार्बल का क्लीनिंग पूरा फाइनल हुआ. एंड आवर फर्नीचर वाज ऑलरेडी लैंडेड हियर इन दिल्ली. You bought from outside, yeah. He did not fulfill that, and I told him कि अगर 10th October को if you don't deliver, I'll start cutting 20,000 per day from your thing. Yes. अभी तक deliver नहीं हुआ है. Whatever remaining payment, ideally I'm not supposed to pay him, but of course I will pay. You will. He knows that. He knows that. I think And he'll come and cry, ma'am, I have to pay this, I have to pay this.
Pankaj told me, are you running a langar? इतनी बड़ी factory you have, and you come and say, I don't have 50,000 to pay to my workers, and you're not delivering on time. And every day your people sit here without the material, without the hardware. You're paying them daily wages. How are you, managing? Management बहुत खराब है उनका. Like everybody's management, whosoever is running a factory in India is probably, I don't know how they are managing. And we told them, we also run a business. We also have people working with us. Yeah. But there needs to be micromanagement from zero to start. Yeah. And they don't, because they're not probably serious. It's just marketing and sales. Client फंस गया, उसके बाद देखी जाएगी जो बस जब तक सेल क्लोज हो जाए, सेल क्लोज हो, डिलीवरिंग पे ध्यान नहीं है, क्योंकि एडवांस आ जाता है. काकस पे 50% मिल गया, अब कॉस्ट तो निकल गई, बाकी तो प्रॉफिटेबिलिटी है, मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, बस वो देखते रहेंगे. आई मीन एक मिनट के लिए फ्लिप साइड समझ के देखते हैं. एक मिनट के लिए मैं समझ के देखता हूँ एज अ वेंडर, राइट. आई डू हैव सिचुएशंस वेयर माय पेमेंट्स गेट स्टक व्हेन आई डिलीवर आल्सो. वी डिलीवर ऑन ट्रस्ट आल्सो, बट दैट डजंट मीन कि अब नेक्स्ट जिसका काम करना है सारा पैसा उससे निकाल के काम किया जाएगा. वही जो, सो दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड. जहाँ ये लोग ओवर बाइट ले लेते हैं ना किसी चीज़ की, सो दे कांट chew that much and they take a bigger bite of it. right. So if they have a capacity to, let's say, execute 5 sites and they've taken up 10 jobs or 15 jobs or 20 jobs, I think that is where the problem lies in. Exactly. और किसी का काम सही नहीं करते, right. क्योंकि माइंड स्पेस में है ही नहीं, लिखने की आदत है नहीं, मेटिकुलस है नहीं, प्रोफेशनल है नहीं अपनी अप्रोच में. So I think one of the biggest challenges with these guys, especially all the vendors and contractors, they are not meticulous about each site and now every site is different. right. हर किसी का डिजाइन डिफरेंस है. तो ये कोशिश ये करते हैं कि इसके यहाँ भी पैनल कर रहे हैं, इसको भी पैनल चिपका देते हैं, इसको ये लकड़ी का कर रहे हैं, सेम कर देते हैं. आजकल भाई ये चल रहा है. So what is trending, I'm doing in 5 houses and I'm doing 20 jobs. right. So वो कोशिश करेंगे जो भी XYZ, तो वही सेम कारकेसेस वहाँ लगा दूंगा, सेम वार्डरोब यहाँ लगा और दूंगा, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो उसका निकाल के यहाँ लगा दूंगा. और मेरे घर में ये हुआ है. right. मेरे घर की किचन में जो सिंक एरिया है उसके ऊपर का कैबिनेट ठीक है, लेकिन उसके टॉप पे एक और ऊपर जो ओवरहेड कैबिनेट होता है, आई रियलाइज कि वो दीवार से इतना दूर है, right. छोटा है साइज में. सो सेड यू वेस्टिंग 4 inches. क्यों कर रहा है? कहते भाई वो छोड़ना पड़ता है. And they have an answer to every mistake that they make. ऐसे क्यों छोड़ना पड़ता है? हाँ. तो क्यों का जवाब नहीं है. right. कहता समझाऊंगा मैं तुझे. हाँ. So he basically deferred that discussion and went on and deflected on something else. right. अच्छा ये बता ये पैनलिंग कैसे करनी है लिविंग रूम में. And me being a fool, समझ के हाँ यार ये ना इसको ऐसे कर देता है, ऐसे करता है. And I forgot about it. yeah. अब वो फिलर लगा दिया उसने. right. तो कहता अब देख तेरे को दिख रहा है. But you've wasted 4 inches of space in my kitchen. मेरे पास पहली स्टोरेज कम है भाई. हाँ. तो मैंने उसको बोला कि यार तेरे को उसको चेंज करने में कितने पैसे लग जाते हैं. It's 2 cabinets, Okay. 2 carcasses which are wrong, and maybe you need to change all the side boards. तेरा Right. backboard तो वही रहेगा. हाँ. I'm just asking you कितने पैसे लग जाते हैं. right. You would have at least saved face in front of me, and I'm somebody who will call a spade a spade. right. So मैं तुझे मुंह पे बोल दूंगा कि यार ये गलती की. And now it's fitted. So even I feel a little cheated. right. कि यार ये इसने जानबूझ के भी कर दिया, and he could have corrected it. right. If he actually had that responsibility. right. Now it was left to me to create a scene. right. कि मैं पूरा सीन क्रिएट करूं, पूरी तरह लड़ूं उससे, तब वो चेंज करेगा. And that is one aspect of this human behavior in this construction industry that I don't like. exactly. And I think that is true with pretty much everybody. And you feel petty about being mean, and if you're not that person who will scream and shout, it changes you as a person while you're going through that process. ईशा, Because यार, हम you लोग can't. एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, अगर किसी एक स्पेसिफिक चीज में नमक तेज है, हाँ. हम उन लोगों में से जो बोल नहीं पाते, exactly. ठीक है. और माई वाइफ प्रॉब्ली विल स्टिल कॉल द गाय अप एंड से भैया नमक तेज, ये सही नहीं है. आई स्टिल फील अ लिटिल वियर्ड सेइंग दैट टू द अदर पर्सन. right. अब जब यार you've been raised to not complain, right. how do you learn to complain when it's wrong? right. And undertaking तो छोटी नहीं है. right.
कोई 2-4 हज़ार रुपए तो लग नहीं रहे किसी चीज में. It's a matter of lakhs. नहीं, and you know, you can probably oversee one part of it, but when you see that person is callous and careless about every single thing that he's doing, how many times can you turn a blind eye? You've seen That's that. the point. You've seen those reels, na? जो मैंने अभी episode डाला है when to fire your contractor. Exactly. The red So flag. that is you why I commented told on you. something, right? Yeah, so that is why I told you that, you know, where do you find those contractors? Yeah. Like, where do you find एक लिस्ट ऐसी शेयर करो कि ऐसे अच्छे लोग हो रहे हैं. ऐसे, हाँ. मुश्किल है बहुत बनानी, but होंगे कुछ. Right. So I'm still going to put a number on it कि okay 2 out of 10 are pretty good. But शायद ownership लेने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. And I think the entire construction space gets looked at in a bad way. Exactly. Because you lose that trust. One person cheats you. Yeah. वो ये ना कि क्या बोलते हैं उसको, दूध जला फूक फूक के पीता है. Yeah, exactly. दूध का जला. दूध का जला फूक फूक के पी. छाछ भी फूक फूक के पीता है. So once you've burnt your hands in the industry, you look at everybody. You look at everybody that probably इसका क्या फायदा हो सकता है इस चीज में. Even if the person is genuine, that person also is looked like that. Would you now go back, now that you're done with your house, would you go back to Pankaj and say कि तेरे को कहा था ना मैंने कि renovation नहीं करते? Yeah, do you think new build is easier compared Of course, new build is easier. I have spoken to people who have told me new build is easier to do because you're starting from scratch. But again, that depends on the number of vendors and the teams and everything. But I would still say that, you know, research, because this industry is, you know, rapidly changing. It's changing so fast. Even the day you decide your designs and the day you deliver, उन 2 सालों में भी बहुत सारे changes आ चुके होते हैं. So I would say research, क्योंकि जो हमने पहले 10 साल पहले जो चीजें देखी थी वो तो अब आज मार्केट में है ही नहीं. They are all. This was a very good advice that even I received from somebody. जब मैंने ACs लिया, right? So I asked somebody कि 3 staff, 4 staff, 5 staff क्या करो? कहते भाई go with the latest. Go with the latest tech. ये 2 साल 3 साल 5 साल में वैसे ही पुरानी हो जाएगी. It's kind of like your iPhone. Right. You know, ये आज वही 15, 16, 17 यही चलना है. हर साल नया आ जाएगा कुछ and then it'll get outdated. Usually these things are changing very fast, especially based on Wi-Fi and whatnot. So go for systems which are reliable and are new tech, right? Right. हमने कहा अच्छा चलो फिंगरप्रिंट लॉक चेक करते हैं. फिंगरप्रिंट लॉक में गया and me being that देसी माइंडसेट, या तो चलो फिंगरप्रिंट हो, नंबर हो और एक की हो, चलेगा. Right. Then I realized okay, there's something with the Wi-Fi also. Right. With an app system. I'm like, should I buy it? I discussed the pros and cons of it. तो जितना मैं डिस्कस कर रहा था ना, पता है वो वेंडर मुझसे क्या कहता भैया भैया एक लगाना है, आपने कितने सवाल पूछ रहे हो आप? मतलब भाई मेन गेट का है. Same. अभी मेन एंट्री का दरवाजा मैं नहीं तुझसे पूछूंगा तो घर में कोई भी घुस जाएगा. सेफ्टी डिस्कस कर रहा हूँ यार तुझसे, अपनी फैमिली और अपने बच्चों की. Right. It's a basic thing that I'm asking you. I understand that it might not be a good ticket size for you, but I need to know all these things. Right. So later on, when I realized that okay, this is how the world operates, I started doing my own research. Took parallel 3 quotes. तो मैंने I changed my complete modus operandi of how I was doing things. Jaguar है तो 3 जगह, whatever, Kohler है तो 3 जगह, tiles है तो 3 जगह. So I started doing that, started comparing costs. I eventually went in with the person I can reach out to later. Yeah. भले उसकी cost 2%, 3% ज़्यादा हो. Exactly. I eventually went for the person I can reach out to. Yeah. Who is answering my queries and giving me genuine advice. That is what happened with me eventually. दिन 2 दिन delay, I'm okay with. Accountability चाहिए. True. So same goes with me. So like we are at a process at the stage of buying electronics. So अब वही है, दिवाली सेल चल रही है, सारे बड़े ब्रांड्स डील्स दे रहे हैं, बट नोबडी इज अकाउंटेबल, क्योंकि उनका जो सेल्स पर्सन है आज है 15 दिन बाद नहीं होगा. So we finally decided that we'll go for a store who has been in the market for 15 years, who is a dealer. He's probably charging extra 5,000, 10,000 per electronic, but he has a reputation. Absolutely. उसको कुछ कहेंगे, बात करेंगे. उसको अगर आफ्टर सेल्स देखें तो वो देगा, क्योंकि उसको दुकान चलानी है. अरे मुझे अच्छे से याद है, बाप रे, मम्मा के घर पे देयर वाज दिस WC व्हिच क्रैक्ड इटसेल्फ, अपने आप टूट गई. सो डैड थे तब, तो माय डैड कॉल्ड अप द गाय, पास में ही हमारी मार्केट के अंदर ही थे वो पुराने. यार वसीचा जी, तो यार तू परेशान क्यों हो गया, मैं भेज देगा तेरे, मैंने एक फ़ोटो भेज दिया बस. डैड ने मुझे पिक्चर भेजी क्रैक की, और वो लगी 6 महीने हुए. तो डैड ने फ़ोटो भेजी, उन्होंने अगले दिन नहीं भेज दी,
बंदा भेजे इंस्टॉल करने के Right. कि प्लम्बर भी मैं भेजूंगा, कंपनी को चार्ज करूंगा. Right. And he did that. Right? मैंने उन्हीं बसीचा जी को कॉल किया, ऐसा मेरे घर की फिटिंग लानी है. 10 साल बाद Right. I called up the same guy. Yeah. मैं सर मुझे फिर नहीं होता आप 5,000 फालतू लोगे 10,000 Right. मुझे आपका कोट भी नहीं देखना. Right. उनका था कोट 5,000 फालतू, मैंने उन्हीं से लिया. It is just a matter of trust, Yeah. which gets broken so many times while you're doing your home. Yeah. इतनी जगह ठगे जाते हो आप. Right. मैंने जो रैंट किया था ना इससे पहले वाले 16 एपिसोड में, मैंने उसमें कुछ ऐसा बोला है, मैं वैसे सबको बता रहा हूँ, पहले पता नहीं वो एपिसोड अब तक रिलीज हो गया नहीं. बट आई थिंक दैट विल कम बिफोर दिस. सो मैंने उसमें बोला है कि building your house is like a series of losses, which feels like a victory once you're done. And I don't know if you've actually won. That's true. It's a series of losses, Yeah. and only feels like a victory when you've slept in your house. क्या हो गया मेरा घर? खत्म. But given a choice, I don't think I will renovate again. Yes. मैं तो नहीं करूँगा, मेरे पास हिम्मत नहीं है. हालांकि अब मुझे लगता है मुझे आ गया है. Right. हाँ, that's true. And पता है, the thing is, no architect, I don't think so. जो बोलते थे ना, like my father used to say कि ये पढ़े लिखे गंवार है. तो इस इंडस्ट्री में जो सेल कर रहा है, आई थिंक उसको पता ही नहीं है कि ऑन द ग्राउंड काम कैसा होता है और कैसे होता है. सेल्स वाले को टेक्निकल नहीं पता. हाँ, टेक्निकल वाला जो इंस्टॉल कर रहा है वो उससे सेल्स नहीं कर सकता बेचारा, वो पॉलिश नहीं है. एग्जैक्टली. तो कंपनीज आर नॉट हायरिंग हिम लाइक दैट. तो ये भी बड़ा चक्कर है, ये डिवाइड भी है सेल्स और टेक्निकल टीम में. जो हमें बोल के जाता है ना वो एक्चुअली आता नहीं है. प्रोडक्शन टीम में कुछ और हो रहा है फैक्ट्री में, और इंस्टॉलेशन में कुछ और. और जो ऋषभ ये अभी रियलाइजेशन है कि शायद आ गया, अभी तो घर बनाओगे नहीं, 10 साल बाद फिर से ये जो लगेगा ना कि सीख लिया है, पता चला कि ताला ही चेंज हो गया, चाबी तो कोई बात नहीं. सो वो इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी. You're right. That is what it is about this industry. ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा चेंज हो रही है. लाइक मुझे नहीं पता था कि कभी केमिकल से टाइल्स लगती हैं और ये ऐसे काम होता है. So it's changing, rapidly changing. And are you happy with the final finish? What's happened? Yeah, of course. Any definitely. regrets? Not really. I mean, pretty much covered up everything. One good decision was not buying furniture from Delhi. Yeah. So that saved me a lot of trouble probably. And yeah, China has been a good market for you. You've been there. very good. Very good. Like, What was the difference that you found there and here? so like when we went to China, they said 90 days delivery. Like from the date you close Okay. to the day you delivered your products. We realized it was 90 days and it came in 85 days. So we could not finish work on site. The products, But you've seen the product, it's opened. Beautiful, as promised, 100% delivered. No challenges. So that has saved a lot of trouble. And I think जो nationalists देख रहे होंगे ना इसको थोड़ा हमें bash करेंगे. ये इसकी रील बना के डालूंगा मैं कि but I don't think there is any problem with appreciating a good job. अब exactly. China is the factory of the world right now. And अगर हम nationalist movement छेड़ के कहते हैं कि हिंदुस्तान नंबर 1 है, ऐसा सच नहीं है शायद. नंबर 1 बनने में बहुत टाइम है. बहुत time. But they are leaps and bounds ahead. I've heard that time and again. I've seen a lot of things. They are very much dedicated to their work. We went to China and we closed our curtain order at 12 in the midnight. आप बिलीव करोगे कोई दुकान वाला इंडिया में 10 बजे तक दुकान खोल के बैठेगा? We entered, like their closing time was 8. We called them up at 7:45 कि ma'am, we are just free now. Can we come in? The owner of that shop was there. She received us at 7:45 at her place, fed us food on her shop, and she was there with us at 12 p.m. and offered us to, drop us at our hotel back. She closed that order for 4 hours. She worked with us because she knew we had our flight next day and we cannot come in again. Wow. And it's not that she doesn't have a lot of people coming in. Yeah. She's very, very busy, but she honored the customer who was coming in. And you've flown in from a different country. She respected that. Yeah. And because we had a middleman and she knew that, it's him who has got us, and she honored that person also. वो चाहती तो ना भी बोल सकती थी कि my closing time is 8. And her whole staff also stayed back. Can you see that dedication in India? The staff stayed back as well? Yes. They offered us tea, they offered us biscuits, they called up for fruits so that we were at
ease. And she's delivered beautifully. और देखो, let's put things in perspective. एक घर का order है. It's not like you're buying a hotel's worth of linen or curtains from her, right? तो आपने घर के लिए ही तो curtains खरीदे हैं. बड़े से बड़ा ticket size भी क्या होगा उसके लिए? Who's somebody manufacturing for the world? Because you're buying for India. Yeah. There are other people going to her as well, right? That is quite respectful. And actually. the joy and the enthusiasm at 8. I mean, they start off their day pretty early, and she's had a long day. And there was some event, Chinese event also. I mean, their national festival or something 2 days later, which was there. I mean, and the enthusiasm with which she showed us each and every product was mind blowing. We ended up buying wallpapers with her. We ended up buying technical lifts with her for our curtains, just because of the reason that she was so enthusiastic about her product and so kind and welcoming for us. So you got your furniture there, you got your blinds there. We got everything. We got our curtains done. We even got our dustbins from there. Oh, wow. We got our paintings. We got our carpets. Everything. And I think that saved me a lot of trouble. I closed everything within a span of 5 days. All of the things? All of the things within a span of 5 days. Why was that made possible? Because of the choice available there, or what? The choice available there, the precision, the amount of enthusiasm that they have, and everything is at one place. You can compare everything and you can make quick decisions. Do you think you saved money there compared to India? I bought better quality as compared to India. Wow. I did not save money, but whatever money I paid, I got worth of it. तो वो जैसे हम when growing up you were saying made in China, we used to look down upon it, वो वाला scene नहीं है, right? See, no, the scene is there, of course. I mean, there are 3 categories there. Okay. Like, They offer you those 3? they offer you all 3. Okay. So there's something that is, so people from China know that India wants cheap. Mm-hmm. Vietnam wants cheap. And Asian countries want cheap. So they give you that category. Based on your pocket? Based on your pocket. You want cheap. Mm-hmm. You want American quality. You want European quality. Yeah. So if you're going for good quality, they would deliver you good products. Right. It's not cheap. It's something at par as whatever you pay in metro cities in Delhi and everything. But the quality is then there's no cheating about the quality part. Workmanship is precise, precision is there. Do you have the ability to reject something if it's not good? Yes, of course. I mean, if a product is not up to the mark, they will change it for you. They will replace it for you. But the payments are done 100% in advance. But they don't, but they won't budge to say that, okay, this is not my fault. If it is genuinely their fault, they will change But it. that hasn't happened with you in the deliveries that you've got, so. Not yet. No not problem. yet. Like I've heard stories from people, like there was one person who bought a sofa from them and it was probably torn, the fabric was torn from one part. Yeah. Maybe a delivery issue or something. Maybe a delivery issue, or maybe the installation that happened in here. Possible, yeah. So possible. But that woman was kind enough to replace the whole sofa for that. Oh, wow. They lifted it, this one, they did not lift it up back. They sent another sofa for them. I mean, it is up to them to probably discard it or use it. Wow. Very nice. Of course, the delivery time was again, Sure, it took time. 6 months probably. Yeah, because it's coming around different But countries. coming and sending one sofa in another container and managing all the logistics would take time. But eventually she did not say no to it. Ki, this is not my fault and you are at your own to fend for it. मेरे तो कॉन्ट्रैक्टर ने पता क्या करा कि भाई वो जिस फैक्ट्री के साथ मैं काम करता हूँ ना, by the way, which that factory he sold to me as his own when he started the job. अरे अपनी फैक्ट्री है, सोफास करता हूँ, अरे सब हो जाएगा यार, मैं करता हूँ सब कुछ. मैं कहा बेड्स भी तू करेगा? कह रहा हाँ. मैं कहा ये स्टडी टेबल्स, साइड टेबल्स, एवरीथिंग. I'm like, great, I found a guy who can do everything. I was happy. आप अच्छे तो सब अच्छे, आपने ट्रस्ट कर लिया. So now later on he says कि भाई वो जिस फैक्ट्री से मैं माल खरीदता था ना, वो यार फैक्ट्री बंद करके भाग गया. मैं रो या हंसू. मैंने बोला अब वो तो मेरे सामने रोके दिखा रहा है ना. मैं रो या हंसू. मेरे तो ना आंसू निकल रहे ना हंसी निकल रही है, क्योंकि मैं तो पैसे देके बैठा हूँ. And this is nearing delivery. Yeah.
जो डिलीवरी की डेट है उसके 1 हफ्ते के पास में जाके यहाँ अटका हूँ कि वो फैक्ट्री वाला भाग गया, Right. हाँ अब तू क्या करेगा? कहता कोई नहीं और है फैक्ट्री यहाँ. So now what he's doing is he's actually told me that he's trading, buying from someone else, which I don't know where he's buying from, what is the Right. source, what material it is. Right. I don't know. So I know nothing right now of my furniture कैसा आएगा. मुझे पता है कि क्या है बस. कब आएगा कि तो बात ही नहीं है. And Chinese are, so precise with their things. They would say, for example, we liked one bed and we wanted all storage beds. ठीक है? So they were like, ये design मैम storage पे नहीं बन सकता. I tried convincing that woman for 30 minutes कि please बना दो. She said नहीं बनेगा. नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा. इंडिया में आपको कोई भी क्लियरली would never say I was like ठीक है मुझे फर्नीचर ही नहीं लेना छोड़ दो चलो दूसरी You think that's a bad thing? जब हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सामने वेंडर हमारी हर विमेन फैंसी पे हाँ बोल देते हैं. हाँ. अगर हम पुश करें. You think it's a good thing? Sometimes it's a problem, right? Because they don't know how to do it. फिर वो जुगाड़ करेंगे. Yeah, and then it will backfire. So that is what I appreciated about that woman, that she's honest about it. लेना है ले लो, नहीं लेना मत. स्टोरेज ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा. क्लियर है क्योंकि बिकॉज दे नो कि इसका हार्डवेयर हमारे पास है नहीं. मैं कहीं से सोर्स करने जाऊंगी, मिला नहीं मिला, एक बार कमिटमेंट कर दी, पैसे ले लिए. दे डोंट वांट टू go back on their commitment and they don't want to go back on their words. Now shall I play the devil right now? Yeah, of course. Should I tell you did a wrong thing by buying from China? I mean, what about the after sales now? You bought something from there. What if you need some correction with that hardware, or you need some sort of a repair job later on? फिर क्या करोगे? So the thing is, they tell you that you are getting assembly done here, and it's coming in pieces and it's getting assembled. It's coming, there? yeah. Who's assembling? My local carpenter. Oh, then the service तो हो गई फिर तो. हाँ, service यहाँ पे हो गई. They say that they give you extra screws, they give you extra hardware. Everything with comes. Everything. Okay. Even your something as small as a buffer for your legs is also extra. Okay. So you're saving that, and they even tell you that just in case you need something, we have your PI with you. You have the PI with you. You just let us know what we'll ship it. Yeah. We'll ship it. And your cup and their assembly lines are so neat and so clean that अगर वो फिक्स नहीं हुआ ना स्क्रू तो नहीं होगा. आप किसी भी जुगाड़ से कोई दूसरा स्क्रू वहां नहीं लगा सकते. तो डैमेज का कोई पॉइंट ही नहीं है. अगर वो हार्डवेयर लगना है तो वो वही लगेगा. यहाँ जुगाड़ से कारपेंटर कुछ नहीं लगा सकता. सो the probability of going wrong is very very low. और फिर कुछ बिगड़ना तो फिर किसी भी चीज के साथ बिगड़ सकता है. And once it's done, and if you bought good stuff, तो I don't think so. And they offer you replacement just in case there's a problem with your carcass or anything else. बाकी टूटने का तो यार कुछ भी नहीं. My जीजाजी in Ranchi, he has hotels, runs hotels. तो उनके यहाँ फर्नीचर फर्निशिंग्स रेगुलर है, लगनी है, क्योंकि लुक भी चेंज होती रहती है यार 2 साल 3 साल के अंदर. ही कीप्स बाइंग. सो ही गॉट हिज हाउस डन. अब उसी होटल के एक ऊपर वाले फ्लोर पे वो रहते भी हैं. तो दैट्स हाउ ही रन्स इट. बहुत पुराना होटल है, बड़ा फेमस है इनका रौर किला में. तो वो आए, रांची इज माई सिस्टर, अभी शी इज मैरिड इन रौर किला. नाउ जीजू कॉल्स मी आप वन डे, ऋषभ भाई के एड्रेस भेजा है तुझे. कहता है इसके यहाँ एक बंदा भेज देगा. अच्छा बताओ काम क्या है. कहते इसको ढूंढना है. मैंने बोला ढूंढना है मतलब? कहते यार देख तुझे बता रहा हूँ, बोलना नहीं किसी को. मैं कहा बताओ ना. कहते 1 साल हो गए, पैसे दिए हुए हैं, आई एम वेटिंग फॉर माई फर्नीचर. लाइक बट मिला किधर आपको? ये कहते यार काम किए हुए इसने, रेफरेंस से आया था. और यार ना फ़ोन उठा रहा है ना कुछ हो रहा है. और मैंने इट्स जस्ट, मैं कहाँ पर फैक्ट्री? कहते नोएडा में. तो फिर पहले नोएडा का एड्रेस आया, फिर एक फरीदाबाद का एड्रेस आया, फिर एक कीर्ति नगर का एड्रेस आया. कहीं नहीं था वो बंदा. वी वर ऑल ऑन द पेपर, बट वो किसी से खरीद के ट्रेडिंग करता था सेम. और जिससे वो खरीदता हुआ आते इसने उसके पैसे नहीं दिए या कुछ भी, व्हाटएवर इट वाज. ही वाज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट विद इन अ ईयर. इवेंचुअली माय जीजू गॉट हैंग ऑफ हिम. ही फाउंड हिम थ्रू समबडी. फिर वो कोई पुलिस में कहीं कंप्लेंट हुई, क्या हुआ, द पर्सन वाज फाउंड एंड देन ही रिटर्न्ड सम मनी एंड देन ही डिड सम जॉब, कुछ दिया. इवेंचुअली वाज अ प्योर लॉस. आप सोचो 1 साल किसे कहते हैं. एंड द ट्रॉमा एंड आई एम लाइक स्ट्रेस.
कहते और वो स्ट्रेस लेने वाले बंदे नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही रन्स वेरी स्मूथ बिजनेस एंड ही वेरी हैप्पी विद वेरी चिल्ड पर्सन। बोला बॉस कैसे किया आपने मैनेज? कहते यार बस मैंने सुनी है, घर में जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, बड़े भाई भी मुझ पे चिल्लाए हैं, मेरे पेरेंट्स भी मुझ पे चिल्लाए हैं, मैं सुबह शाम सुना है मैंने बस। I'm like, that's crazy. One thing that you might not have faced a challenge with, I forgot to actually even discuss this, is you have like 2 kids, right? Like me, Yeah. right? आप young बच्चे Same, आपके जैसे हाँ. मेरे हैं, same. Not too many family members had a lot of say. It was you and Pankaj who decided everything in the house, or Yeah. was it like a democracy where everybody sort of woke up one day and like, अच्छा आज तो मुझे ये चाहिए? Nice. was not like that? So we made it clear. I mean, in the start only कि सबका requirement हमने सुन लिया था. But we knew, you know, it's just one man's show. If 3 people talk, Not too many cooks. too many cooks. मतलब एक के साथ भी बहुत सारी broth हमने spoil कर ली थी. लेकिन it's just that कि अगर 3 लोग बोल रहे हैं तो तब तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता. Like Interesting. everybody designs their own space. Like for example, Pankaj has certain asks that, you know, this needs to be according to this. Yeah. So that was fulfilled कि ठीक है उसको वो चाहिए, पेरेंट्स को ये चाहिए, हमें ये चाहिए, बच्चों को ये चाहिए, बाकी जो बच गया वो मैंने मेरे हिसाब से कर लिया. That's fair. मुझे अपने घर में जो चाहिए था वो मैं अभी तक नहीं बना पाया हूँ. But I'm surprised that I'm getting a wardrobe. Okay, मेरी अपनी पूरी एक wardrobe है, right, which is something I'm extremely excited about, क्योंकि अभी तक right, इस उम्र तक मेरी अपनी एक wardrobe नहीं है. Hmm, बच्चे घुसे हुए मेरी wardrobe में. right, I'm fairly certain वो उस wardrobe के साथ भी होगा. हाँ, But I'm okay with that. right, yeah. क्योंकि space नहीं होती है घर में. कैसा लग रहा है ईशा? Are you feeling lighter? Having spoken Very. about all the, Very, very. have you spoken about all the things? No, I mean, I Anything? think the night would fall short, but yes, of course. Yeah. Of course. Still better? Better. Yeah? Yeah. Okay. If you come up with something else, Yeah. we are open to discuss that again. Definitely. So this was therapy. Yeah. Sort of therapy, yes, of course. This felt good. Yeah. And you're talking to somebody who was in the same boat. Same boat and burnt the same fingers. Yeah, and still not done. Still not. I was ahead of you when we started talking, Yeah. and I'm behind you when you finished. So job well done on your end. Yeah. Hopefully I'll finish very soon as well. And देखते हैं All घर. my blessings. And, Thank you so much yeah. for the kind wishes. Yeah. Hopefully 2024 में अपने घर में घुस जाऊंगा मैं. Yeah. कोशिश Definitely. चल रही है. All the best. And congratulations to you and Pankaj for the Same- new home. same And I to hope you. Yeah, you guys enjoy the space Thank you so much. as much effort that you've put in, and I Thank hope it gives you that fruit. Thank you. I'm going to close this here. Usually मैं closing में डालता हूँ कुछ ना कुछ 1-2 dialogues. But if you have any questions, write to me at India's #1 construction podcast @gmail.com. You can follow me on Instagram at India's #1 construction podcast and message me there. If you have any questions for Isha, please आप messages करिए मुझे. I will ask her. If she has any response to it, we will feed that back to you. Yeah. Thank you for listening. Have a great day.